from 15th of April. They're starting our 2023 batch. This is the first 2023 batch. We'll be having weekly live classes, all the conceptual lectures, everything that is mentioned on the portal you will get. Physical booklets, mock tests, sectional tests, guidance, everything is with you. Okay, we will be there for you providing organized content, but end of the day it's your effort that you need to put. If you are ready to start early, if you are ready to start your IPMAT preparation, that is IPMAT 2023, targeting that and having that goal कि हाँ मुझे वो crack करना है, start early. The competition is very high and you need to have that length of the consistency required at this point of time itself. So start soon. If you're not even interested in the batch, that's fine, but if you're a 23 aspirant, start studying because time is of the essence. Okay, lastly, so if you are interested, if you like my pedagogy, if you like the content that is available on YouTube or what you find that हाँ मुझे समझ आता है, then definitely, if you don't feel like कि भैया जो पढ़ाते हैं मेरे बाउंसर है, then definitely don't take the course because that's more important कि आपको समझ आना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ. अगर वो आता है then definitely you can check out the website or check out the link below given in the description. So we are launching our new course. Now coming back to enough with the commercial, boring the 22 aspirants. Let's start with the concept that I was feeling like teaching. Now, before starting with the solution itself, I thought like let me teach something to all the students since it's going to be a little bit free content. तो at least ये होता है कि वो लाइव क्लास का रेफरेंस दे देता हूँ, बट बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है what I'm referring to. For the ACE IPM students, you don't need to watch this. I have taught in the last live class of 19th March derivation as well as solved some question itself on these type of functions. Function is a very favorable topic of IPMAT and very scary topic for all the aspirants. So they both go in hand कि जितना ज़्यादा डिफिकल्ट वो देते जितना हम उतना स्केयर होते हैं. बट ये चारों चीज़ एटलीस्ट आपको पेन पेपर पे नोट डाउन करनी है. पिकअप योर फॉर्मूला बुक एंड राइट डाउन दिस 4 कॉन्सेप्ट्स आई एम टीचिंग यू राइट हियर राइट नाउ. ठीक है. सो व्हेन अ रिलेशनशिप लाइक दिस इज गिवन, योर यूजुअल हैबिट इज टू डूइंग हिट एंड ट्रायल, व्हिच इज नो डाउट अ रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग इन दैट. हिट एंड ट्रायल करो, वैल्यूज डालो, आंसर आएगा. बट नोइंग some conclusions of these type of functions can be little bit helpful, which will be showcased in the first solution itself. So how this is helpful, let me teach you a bit concept here. तो ये जब f of x plus y होता है, तो this function behaves like, यहाँ पे f of x behaves like a into x. Sir, how did you prove that? Put x का value y. This function is behaving like a power x, a into x. How will I'll showcase to you, I'll prove it to you. ठीक है. तो मैंने क्या करा, f of x रहा है a x, तो f of y कितना हो जाएगा? सर x की जगह पे y रखना है, a y. ठीक है. तो a f of x y कितना हो जाएगा? x plus y, a into x plus y. ठीक है ना. और सेम अगर आप f of x plus f of y को ऐड करोगे तो क्या आएगा? f of x plus f of y को ऐड करोगे तो क्या आएगा? ax plus ay. ठीक है. a कॉमन ले लीजिए, a power x plus y. So I just proved, derived in front of you. So when the function like this is given, f of x plus y equals to f of x plus f of y, the function behaves like a into x, where a is a constant that we may not know. हमें इस constant की वैल्यू नहीं पता होगी. एक a into x की constant हमें शायद निकालना पड़ेगा. But this function behaves like a into x. What about this one, sir? x into y behaving like x plus y. So this one goes like, आपको मैं दिखाता हूँ ना, f of x is equals to f of x into y, x plus y आ रहा है, तो a power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन. लेट्स प्रूव इट. f of x तो लिख ही दिया है, f of y भी लिख दो सर, a पावर y. तो f of x plus y x into y, x plus y है ना, तो दैट विल बी a पावर x की जगह पे x plus y रखना है, x plus y. और आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, f of x into f of y कितना हो जाएगा? a पावर x into a पावर y, दैट इक्वल्स टू a पावर x plus y. बोथ आर इक्वल. सो दिस फंक्शन बिहेव लाइक a पावर x, जहां पे हमें a की वैल्यू नहीं पता होगी. बट नोट देम डाउन, यू शुड रिमेंबर दीज प्रॉपर्टीज कि कभी ऐसा फंक्शन आ गया, इट बिहेव लाइक एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. बी कॉन्फिडेंट इनफ टू यूज इट लाइक एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. f of x into y इक्वल्स टू f of x plus f of y. x into y है तो क्या आ जाएगा? रिमेंबर देम. बहुत यहाँ पर प्लस, यहाँ पे प्रोडक्ट प्लस है, यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे प्रोडक्ट एंड प्लस है, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट और फिर दोनों प्रोडक्ट वाले भी है. लॉग बेस ए एक्स. हमें बेस की नहीं वैल्यू, ए की वैल्यू नहीं पता होगी, बट हाँ ट्राई कर सकते हैं. f of y, मैं आपके सामने पूरा डेरिवेशन भी कर रहा हूँ, तो प्लीज अप्रिशिएट द एफर्ट. ठीक है. f of x into y करना है ना, f of x y कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ a पावर एक्स वाई. और चाहे तो आप x प्लस वाई करके देख सकते हैं. log a प्लस log b कितना होता है? log ab, एंड दैट्स इज log x y. परफेक्ट. ओह आई ड्रॉप्ड दैट बाय मिस्टेक, बट आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, log बेस a x. ठीक है. टॉट इन द लास्ट लाइव क्लास, एग्जाम्पल सॉल्व करवाए हैं, तो प्लीज वो चेक कर लेना एक बार. ठीक है. f of x into y equals to f of x into f of y.
एफ ऑफ एक्स इंटू वाई बिहेव लाइक एक्स पावर ए। ट्राई कर सकते हैं। अब आपको मैं ये वाला डिराइव नहीं करूंगा, बट दीज 4 रिलेशनशिप यू शुड रिमेंबर, ये नोट डाउन कर लीजिए। वेर ए का हमें पता नहीं होगा, ए कांस्टेंट होता है, वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन समझाना ज्यादा आसान होता है, जो कि मैंने लाइव क्लास में किया हुआ है, तो रेफर टू दैट। बट द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन द एनरोल्ड वंस, सिंस इट्स अपलोडेड ऑन यूट्यूब, तो एटलीस्ट आप ये चीज नोट डाउन कर सकते हैं एंड खुद से क्वेश्चन सोचो, खुद से वैल्यू सोचो, एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर देम वेरी इजीली। ओके, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशंस नाउ। Key idea is you have to pause and try it by yourself. Until unless you don't try it, you won't appreciate the working that I am following or the insight that you could have got when you have tried it by yourself. And if you have already done 21 papers, no harm to solve it again, okay, no harm. Also try to pick up small learnings from the solution as well. For example, जैसे मैंने पिछली बार प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था, तो कैसे फैक्टर्स को पिकअप करना होता है, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, बट बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम सेव करती है when we are actually writing a mock or attempting the actual paper. So let's start this one. फंक्शंस का था, इफ यू आर समवन हु जिनको फंक्शंस थोड़ा सा डर देता है, तो उसको राउंड 2 में रख लो। बट अगर आपको लास्ट क्लास ऑफ फंक्शन इफ यू हैव अटेंडेड, देन यू वुड नो कि दे आर फॉलोइंग अ सिमिलर पैटर्न। मैंने आपको 5-6 पैटर्न बताए हुए हैं फंक्शंस में, तो वो कैसे पिकअप करना है, दैट्स ऑल्सो लर्निंग। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मेथड इज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, ओके। हिट एंड ट्रायल मतलब सर अलग अलग वैल्यूज डालते जाएंगे और देखते कुछ होता है क्या। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी कुछ वैल्यूज है, या तो जो दिया हुआ है वो करो, या तो छोटी छोटी वैल्यूज के साथ स्टार्ट करो। छोटी वैल्यूज के साथ स्टार्ट करने में शायद कोई पैटर्न मिल जाए, या फिर अगर छोटी वैल्यूज वर्क नहीं करती है, देन ट्राई टू फाइंड व्हाट वैल्यू इज गिवन हियर, ट्राई टू पुट दीज वैल्यूज, ऐसे करके भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल वैल्यूज। आई विल बी पुटिंग द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वैल्यूज x इक्वल्स टू लेट्स से 1 and y इक्वल्स टू 0 and x equals to 1, y equals to 0. At least let's start with the very simple one. x equals to 1, y equals to 0. तो x equals to 1 रखूंगा, तो ये हो जाएगा f of 1 plus 0 is equals to f of 1 plus f of 0. ठीक है, तो यहाँ से f of 1 आएगा, f of 1 कैंसिल, तो f of 0 का वैल्यू 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, इससे f of 0 का वैल्यू तो आ गया, बढ़िया। क्या पता शायद सबका वैल्यू 1 हो, क्या पता, ऑप्शंस को देखो नहीं है, क्या पता, हमें करना पड़ेगा। एटलीस्ट ऐसे ऐसे मल्टीपल थॉट्स आने चाहिए। या आप क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू दिमाग में आ रही है x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1, इजी वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया। ठीक है, तो f of 1 प्लस f of 1 इज इक्वल्स टू f of 1 प्लस f of 1। ठीक है, तो f of 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू f of 1। ओके, मे बी दिस इज द थिंग कि क्या पता 2 इंटू f of 1 हो। ठीक है, लेट्स से एक और x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 डालकर देखते हैं। x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 डाला, तो ये 2 अगेन मैं लिख ही देता हूँ ना यहाँ पे, x f of 2 प्लस 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो f of 2 इज इक्वल्स टू f of 2 प्लस f of 2। ठीक है, व्हाट डू यू रियलाइज दैट f of 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू f of 2, 2 इंटू f of 2। ओके, प्रिटी सैड, हमारे पास कुछ और मिला नहीं। अच्छा, f of 2 का वैल्यू f of 1 था, तो आई कैन प्लेस f of 2 as f of 1, दिस बिकम्स 4 of f of 1, and I guess this should give you a slightly confidence. f of 2 is equals to 2f of 1, f of 4 equals to 4 of f of 1। थोड़ी और वैल्यूज डालते हैं, क्या पता पैटर्न जो हम सोच रहे हैं वही निकल जाए। लेट्स से x equals to 2, y equals to 2, ये दोनों वैल्यू डालकर देखते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, मैंने कितनी छोटी छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया है, 1 0 1 1 2 1 2 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 एंड दैट बिकम्स 6। तो f of 6 इज इक्वल्स टू f of 2 प्लस f of 4। परफेक्ट, ये क्या है 2 of f of 1, ये क्या है 4 of f of 1, दिस बिकम्स 6 of f of 1। ओके, ग्रेट। तो द फंक्शन गोज लाइक f of x इज इक्वल्स टू x इंटू f of 1। सिंपल, as simple as that can be। ठीक है, तो ये हमें एक पैटर्न मिल चुका है। आई गेस वी शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ नाउ व्हेन वी आर एबल टू फाइंड एटलीस्ट 3 वैल्यूज, बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ कि दिस इज द पैटर्न दैट इज बीइंग फॉलोड। तो f of 2020 is equals to 1, which is as good as writing as 2020 into f of 1, 2020 into f of 1। तो f of 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 upon 2020। ठीक है, तो f of 2021 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f of 2020। अब ये कितना 2021 इंटू f of 1, है ना, ये पैटर्न था हमारा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2021 अपॉन 2020। ओके, आई एम अज्यूमिंग दैट यू मस्ट हैव गॉटन बोर्ड। ऑब्वियसली लंबा मेथड किसको पसंद है भैया, कुछ अच्छा बताइए, कुछ मसालेदार, कुछ छोटा मेथड बताइए। तो हाँ, हिट एंड ट्रायल मेथड बिकम्स स्लाइटली लॉन्गर। आप देख सकते हैं हमने काफी सारी वैल्यूज अज्यूम करी एंड स्लाइटली रिस्की इन पेपर, क्योंकि शायद पैटर्न ना मिले एंड शायद हमें वो
उस वक्त पे एकदम है ना पेशेंस नहीं होता है, तो दिखता हुआ पैटर्न भी हमें नहीं दिखता, एंड वी गिव अप एंड वी एंड अप वेस्टिंग 1 मिनट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तो पेशेंस रखा करो, जब भी हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, कोई भी मेथड कर रहे हो, प्लीज पेपर के अंदर पेशेंस मेंटेन करके रखा करो, तभी आप लोग को ऐसी चीजें दिखती है, ठीक है। अब नाउ कम्स द smaller approach, or I would say shorter approach, or what I definitely call it as ACE IPM approach. I shouldn't be giving them names like ACE IPM approach. It's a very general process this time. Instead, what I have taught is a very general thing which you can find anywhere on the net. ठीक है, तो एक्चुअली ये जो फंक्शन है ना, अब मैं इस फंक्शन को एक सेकंड के लिए ऐसे देखेगा, एक्स वाई इक्वल्स टू ए, बस इसको थोड़ा सा स्केरी बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे भी एक्स का टर्म दे दिया था, यहाँ पे भी एक्स का टर्म दे दिया था। अगर लेट्स से मैं इसको एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए लिखता हूँ, तो एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए। अब आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये फंक्शन देखने में भी और वैल्यूज पुट करने में भी और ऐसे इन जनरल भी। नाउ माई थॉट इज, माई क्वेश्चन इज सिंपल आइडिएशन, एफ ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए, ये किसके जैसा पैटर्न फॉलो करता है? n इंटू एक्स। n इंटू एक्स, सर n इंटू एक्स क्या है? एक जनरल इंटू एक्स का वैल्यू, इट्स ऑलवेज फॉलोड। अगर ऐसा फंक्शन है, यू कैन नोट इट डाउन, आई एम हाईलाइटिंग इट इन द रेड बॉक्स सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। वैसे तो मैंने ऐसे 5-6 फंक्शंस बताया लाइव क्लास में। एक बताया था कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो कौन सा है? एक बताया था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, तो कौन सा है? लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर्ड फंक्शन। तो ये सारे मैंने लेक्चर्स लाइव क्लास के अंदर पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो मेक श्योर दैट आपकी नोट्स में हो ये सारे के सारे टाइप ऑफ फंक्शन जो मैंने पढ़ाए थे, ठीक है। अब ये वाला फॉर्म दिया हुआ है तो मुझे पता है ये एन ऑफ एक्स के फॉर्म में है, मुझे दिया हुआ है एफ ऑफ 2020 इज इक्वल्स टू 1 विच इज एज गुड एज एन इंटू 2020। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 1/2020। एन का वैल्यू अगर 1/2020 है तो एफ ऑफ 2021 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2020 इंटू 2021, तो which is as good as writing it as 2021/2020। ठीक है, तो ये लाइव क्लास अगर नहीं देखी तो जाके अभी देखो एंड दिस इज द आंसर। पहले ये पूरा क्लास पूरा लेक्चर फिनिश कर लो, बट यू गॉट आंसर इन 1 स्टेप, आई वुड से इट 1 स्टेप, because 1/ये, तो ये becomes round 1 if you are able to remember. See, this is the importance. If you are able to remember this key concept, this building blocks, you will end up doing questions in timeline of 20 seconds, 30 seconds as well. तो इसका आंसर कितना हो गया? f of 2021 is equals to 2021/2020. This is our answer. Okay, great. Let's move to the next one. I guess pretty easy. Round 1, I'm 100% sure at least many of the students must have got it right. ऑल्सो द सेकेंड रीजन है कि लॉग हमेशा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, दैट आई हैव ऑलवेज हाईलाइटेड, एंड देख लीजिए लॉग हमेशा पेपर में आया ही है। सो मेक श्योर दीज चैप्टर्स दैट आर रिपीटिंग, फंक्शंस, लॉग, सेट, कीप हैविंग स्ट्रॉन्ग, दीज चैप्टर्स शुड बी स्ट्रॉन्ग। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन, वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉग इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो अब बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा एक लेंथ दिखता है बट इवन लेंथ भी नहीं है। इट्स अ राउंड 1 क्वेश्चन, इट्स अ वेरी फर्स्ट राउंड क्वेश्चन, बिकॉज इसमें ना मैं किस तरह एक तो राउंड 1 राउंड 2 करता हूँ वो भी हाईलाइट कर देता हूँ। राउंड 1 वो होते हैं जिसमें आपको पता है कि ये 4 स्टेप के बाद आंसर आना है। राउंड 2 वो होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इमीडिएटली क्लियर नहीं होता है, शायद सॉल्व करने में समझ आ जाए बट क्लियर नहीं होता है कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा लेंथ होता है, कॉन्सेप्ट पता है, लेंथ होता है। और राउंड 3 होता है जिसमें तो ब्लैंक ही है, यही नहीं पता है कि कॉन्सेप्ट कौन सा है, फॉर्मूला क्या लगेगा, इनिशिएट कैसे करना है। ठीक है, तो राउंड 1 इसलिए क्योंकि मुझे दिख रहा है अरे log 2, log 3, log 4 ऑफ a इक्वल्स टू 0, एक ही प्रॉपर्टी यूज होगी, वो मैं लिख देता हूं, log a ऑफ n इज इक्वल्स टू x, तो n इज इक्वल्स टू a पावर x। पावर, ये a ऊपर चलाता है, x को ऊपर खसका देता है। याद करने के लिए कोई मजेदार चीज नहीं है, बट अब बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सी एक प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी को यूज करके हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, as expected। ठीक है, let's solve this one। log 2 of log 3 of 4 of equals to 0 दिया हुआ है, तो 4 पावर 0। अच्छा, स्टार्ट कैसे करना है? सबसे बाहर वाले log से। ओके, लेट मी राइट दिस वन, log 2 of log 3 of log 4। अब मैं यहाँ पे सब में 0 0 डाल सकता हूँ, डेफिनेटली वो सारे ही तो इक्वल टू 0 है। अगर तीनों इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे भी एक 0 डाल दो, यहाँ पे भी एक 0 डाल दो, और इनको तीनों इंडिविजुअली सॉल्व कर दो, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, या ऐड कर दीजिए। आई गेस इट्स अ प्रीटी डायरेक्ट, देयर इज नो अदर catch to it as such। the learning that you will get I'll showcase to you it। ठीक है, तो अब क्या है, इस पूरे नंबर को n समझ लो एक सेकंड के लिए, तो log 2 ऑफ n इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू 2 पावर 0, तो log n क्या था हमारा 3 log 4 ऑफ a इक्वल्स टू 2 पावर 0, तो 1 हो गया।
2 पावर 0 1 हो गया। सेम log 4 ऑफ a को n समझ लो, log 3 ऑफ n इक्वल्स टू x, तो 3 पावर 1 दैट इज 3 पावर 1 इक्वल्स टू log 4 ऑफ a, log 4 ऑफ a इक्वल्स टू 3 पावर 1, 3 पावर 1 मतलब 3। सेम log 4 ऑफ a है तो 4 पावर 3, a इक्वल्स टू 4 पावर 3, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। सेम टू सेम हम नेक्स्ट वाला सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले में अगर मैं तो आपके लिए सॉल्व कर दूंगा अभी, बट अगर आप एक्चुअल पेपर में कर रहे हैं ना, यू हैव टू स्पीड अप, आपको रियलाइज होना चाहिए अरे इतना इजी पैटर्न चल रहा है, एंड में आकर 4 पावर 3 बच रहा है, तो मैं यहां से अपने असम्पशन से b होगा 2 पावर 4, c होगा 3 पावर 2, क्योंकि ये वाला तो इसको 1 बना देता है, ये वाला इसको 2 बना देता है और वो 3 का पावर 2 हो जाता है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं b इज इक्वल्स टू 4 पावर 2, b इज इक्वल्स टू 2 पावर 4, c इज इक्वल्स टू 3 पावर 2, ऐसे। बट लेट्स सॉल्व इट, अगर लेट्स एटलीस्ट मैं आपके लिए सॉल्व करने के टर्म्स में तो थोड़ा सा लेंथी वर्क कर सकते हैं, प्रैक्टिस के वक्त थोड़ा सा हार्ड वर्क कर ही सकते हैं। इक्वल्स टू 0, तो ये पूरा n हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 ये 1 हो गया, तो log 4 ऑफ log 2 ऑफ b इज इक्वल्स टू 3 पावर 0 दैट इज 1, log 2 ऑफ b इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 2 पावर 4। ठीक है, आई गेस मैं नेक्स्ट वाला भी सेम टू वे में सॉल्व करूंगा, लेकिन अब मैं डायरेक्टली लिखने जाऊंगा। अगर आप देख सकते हैं 4 पावर 3 2 पावर 4, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 पावर 2, a प्लस बी प्लस सी, a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू यहां से आ रहा है 64, b का वैल्यू यहां से आ रहा है 2 पावर 8 16, 2 पावर 4 is 16, 3 पावर 2 is 9, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी इज 64 प्लस 16 प्लस 9 which is 89, 89 is my answer। ठीक है, तो my final answer is 89। ठीक है, होप यू लाइक इट। तो लर्निंग क्या था इसका, बी कॉन्फिडेंट दैट आपको लॉग आता है, पहला लर्निंग। सेकेंड लर्निंग क्या था आपका, कि आपको अगर पहले स्टेप में अगर बहुत सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो किया है, तो नेक्स्ट वाले 2 के लिए एटलीस्ट कॉन्फिडेंट बनो। ये तो फिर भी मैंने एक्स्ट्रा वर्क कर दिया है, आपको इतना वर्क नहीं करना था, डायरेक्टली बी का इक्वल्स टू 2 पावर 4 लिखना था। पहले वाले में समझ आता है, ये 10 सेकेंड कर लो, बट इसको और इसके लिए आपको 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगाने हैं। ए बी सी का वैल्यू लिखना था 89। आई एम प्रीटी श्योर दिस क्वेश्चन इज ऑफ 30 सेकेंड। यू जस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस वन फैक्ट दैट log a ऑफ n इक्वल्स टू x, तो a पावर x इक्वल्स टू n। बी श्योर, मैंने आई शोकेस, आप चाहे तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके एक वीडियो होगा 2021 में, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, एग्जैक्टली सिमिलर टू सेम कॉन्सेप्ट, ऐसा ही कुछ था। इसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज करके ऑलमोस्ट सारे आंसर आते थे। तो मेक श्योर कि आप ये आइडेंटिटीज अपनी फिंगर टिप्स पे रखते हो। लेट्स मूव टू द थर्ड वन, अगेन राउंड 1 क्वेश्चन। आई पर्सनली बिलीव दैट इट्स अ राउंड 1 एंड यू हैव टू बी मोर अलर्ट टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन अ 10 सेकंड टाइमलाइन। ओके, तो हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, अगेन S5 S9 दिया हुआ है। तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला दैट इज ऑफ Sn? Sn का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला है मेरा, ठीक है, S5 S9 का। इफ यू सी समथिंग, ओके, अब और हमें निकालना क्या है, A3 अपॉन A5। A3 अपॉन A5 बेसिकली क्या है, A प्लस 2D। A3 को डायरेक्टली A प्लस 2D लिखना सीखो और A5 को A प्लस 4D ये लिखना सीखो। तो मुझे बस इसका रेशियो निकालना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द फॉर्मूला इटसेल्फ। आपने फॉर्मूला लिखा और प्रोसीड करने के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। S5 क्या है, S5 क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 5 डालो, 5/2 इंटू 2a, 2a, a का वैल्यू तो है नहीं, प्लस n-1, n का वैल्यू 5 हो गया, तो 5-1 इंटू d दैट इज 4d इज इक्वल्स टू 9/2, है ना, 9/2। अगेन a का वैल्यू नहीं है, बट क्या है, 2a प्लस n-1, n का वैल्यू 9 है, तो ये हो गया 8d। ओके, इंटरेस्टिंगली आपको कुछ ऑब्जर्व करना है। ओके, आपको कुछ ऑब्जर्व करना चाहिए। ओके, पहले तो 2 से 2 कैंसल, टेक 2 कॉमन। If you take 2 common from this one, you will be having 5 into 2, है ना, मैं बड़ा लिख देता हूँ ऐसे, 5 into 2, यहाँ पे बचेगा a plus 2d और यहाँ पे क्या होगा 9 into 2 a plus 4d। ठीक है, तो 2 और 2 दिख रहा है, अगेन इक्वल है, तो फिर से मैं 2 और 2 कैंसिल कर दूंगा। 2 और 2 कैंसिल करते हो, आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इस 2 को यहाँ से, इस 2 को यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने कैंसिल कर दिया ना, राइट और रॉन्ग, मैंने कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो 5 इंटू a प्लस 2d इज इक्वल टू 9 इंटू a प्लस 4d। अरे a प्लस 2d a प्लस 4d, a प्लस 2d a प्लस 4d, तो a प्लस 2d अपॉन a प्लस 4d का रेशियो कितना हो जाएगा,
It's so easy. We don't even need to find any relationship between A or D, or not even the actual values of A and D, and we got our answer as 9 by 5. 10 seconds, if you see 3 steps required, answer is 9 by 5. This is my final answer. Okay, hope you liked it. So be alert with the fact itself कि यहाँ पे है. आप चाहे तो इनके बीच रिलेशनशिप निकाल सकते थे, शायद एक्चुअल पेपर में अलर्टनेस ना रहे तो शायद आप एक्स्ट्रा वर्किंग कर ले, बट अगर आप थोड़ा बहुत भी ऑब्जर्व करते हैं then you save yourself from more 10 seconds, and these 10 seconds counts. Final answer 9:5. Another 10 to 30 second question maximum. 30 second timeline, you could have done it. Okay, round 1. Let's move to the next one. I would consider this as round 2. Not round 1 for a reason, because it's based on matrices and determinants. A and B are non-singular matrices where AB equals to BA and दिया हुआ था, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, और इस इक्वेशन पे फाइनल आउटपुट भी ABCD ऐसा ही था, AB A इनवर्स AB, तो काफ़ी it's a doable one, but actual paper mein it requires a little bit of more patience, and when you think that you need more of thought process and more of stepwise working, it's better to keep it for the next round. So it's a round 2 question. Let's proceed with the calm head. How I'll be proceeding with this one? Okay, 2A minus B. Some things are very obvious in this question. A plus B inverse, A plus B inverse. So I'll be taking A plus B inverse common. If I'll take A plus B inverse common इन दिस वन, इस इक्वेशन में ए प्लस बी इनवर्स कॉमन ले लिया, तो ये ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस साइन है तो ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो बाहर माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो अंदर जाके उसको प्लस करना है, तो फिर मैं नेगेटिव साइन देता हूँ, है ना. आप चाहे तो अब ओपन करिए, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर. कैसे लिखा? ए प्लस बी इनवर्स ले लेंगे तो ए ही ए इंटू ए बचेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये ए प्लस बी इनवर्स मैंने कॉमन लिया और ब्रैकेट में बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है सर? ये सिंगुलर मैट्राइसिस में भी चलता है. यस इट वर्क्स. ऐसा मैट्राइसिस में भी चलता है. ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आई विल बी राइटिंग इट एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है. एनी मैट्रिक्स, लेट्स से मैट्रिक्स का नाम है सी, तो सी इनवर्स इंटू सी, इसकी वैल्यू क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यू शुड नो दिस वन. तो ए प्लस बी इनवर्स इंटू ए प्लस बी, तो आएगा क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो 2A माइनस बी माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए माइनस बी. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स, इवन द मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो आई इंटू ए विल गिव मी ए, आई इंटू बी विल गिव मी बी. फाइनल बच रहा है 2A माइनस बी माइनस ए प्लस बी. B से B cancel, 2A minus A, that becomes A, and this is my final answer. So I would consider it as a round 1, round 2, because we need a little bit of more patience, but question easy है, question tough नहीं है, moderate to easy के बीच. Okay, I hope you got it. Pick up the small learning from the question itself. Okay, let's move to the next one. Very hard for me to judge this one for a reason, because it's a very student-based thing. For some students, this may be a round 1 itself. For some students, this may be a round 2, and for someone maybe it may be a round 3 as well, because the concept is so simple but so hard to think from the beginning itself. The first pointer is कि हमें ये दिया हुआ है, हमें AP भी दिया हुआ है. पहली बात तो अगर ABC, all three are angles, तो first thing you need to remember that A plus B plus C, इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. हाउ 180 डिग्री? क्योंकि all three are angles. Second thing you need to realize, अगर ABC AP में है तो B is the arithmetic mean of A and C. Arithmetic mean मतलब A plus C by 2 equals to B, और I would directly write 2B equals to A plus C. I know 2B equals to A plus C and A plus B plus C equals to ये, तो मैं A plus C की जगह पे 2B रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 3B equals to 180 डिग्री एंड B का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री. अब ये इंक्रीजिंग AP में है, ठीक है. ये एक तो B 60 डिग्री आ गया, हमें A और C चाहिए, या तो C मिल जाए और हम साइन B प्लस 2C निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज साइन का, किसी का साइन थीटा का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है. साइन थीटा 1/2 कब होता है? एक साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 व्हेन 2A प्लस B. ओके, लेट मी राइट इट विद ब्लैक इटसेल्फ. देखो, इधर साइन 30 पे 1/2 होता है, या साइन 180 माइनस 30 पे, दैट इज साइन 50 पे. तो इधर 2A प्लस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री और 2A प्लस बी इक्वल्स टू 150 डिग्री. इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल है. अगर B का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, अगर मैं उधर ले जाता हूं तो A तो नेगेटिव हो गया. कैन A हैव अ नेगेटिव वैल्यू? ऑब्वियसली नॉट. A माइनस 15 डिग्री तो नहीं हो सकता, राइट. A को कुछ पॉजिटिव ही होना होगा, तभी वो एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल हो सकता है, राइट. लॉजिकल सा बात है. तो हम 15 डिग्री वाला तो पूरा कैंसिल आउट कर, 30 डिग्री वाला कैंसिल आउट कर देंगे. तो डेफिनेटली दिस इज द वन वी हैव.
तो वी आर हैविंग बी एंड वी कैन प्लेस हियर एंड वी कैन गेट फाइनली इजी वैल्यू। बी का वैल्यू यहाँ पे मैं 60 डालता हूँ, तो 2a प्लस 60 इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। ठीक है, तो 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड a इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, AP में है, कितने का डिफरेंस है, वरना 180 सम है, कोई भी एक चीज कर सकते हो। डेफिनेटली मैं सम वाला चीज यूज करूंगा। a प्लस c का वैल्यू 120 डिग्री होना चाहिए, a 45 है तो c हो गया 75 डिग्री। लॉजिकल थिंग, वरना ऐसे भी कर सकते हैं 60 माइनस 45 15, तो 15 और ऐड कर दो b में, ये हो गया AP 45 60 75 और तीनों का सम 180 है। तो a b c का वैल्यू आ गया। साइन 2b प्लस c का वैल्यू चाहिए था मुझे, तो साइन b का वैल्यू कितना है 60 प्लस 2 इंटू 75, तो साइन 2 इंटू 75 150 होता है, 150 प्लस 60 तो साइन 210। साइन 210 का वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, 210 मतलब साइन 180 प्लस 30। आई गेस इट्स प्रीटी ऑब्वियस नाउ। तो राउंड 2 में भी कह सकते हैं, आई वुड कंसिडर दिस एज अ राउंड 2 क्योंकि थोड़ा तो वर्किंग हुआ ही। ऑल्सो 180 प्लस 30, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब टैन और कॉट तो साइन नेगेटिव हो जाएगा अगर साइन और अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। हाँ 180 प्लस 30, तो साइन 30 माइनस साइन 30 माइनस 1/2 इज माई आंसर। ठीक है, 150 वाला पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, सिंपल, तो माइनस 1/2 इज माई आंसर। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन आ जाता है यहाँ पे, वो सब प्रॉपर्टीज आपको पता ही है। ठीक है, तो बेसिक फर्स्ट फैक्ट था ये क्लिक करना। वंस यू क्लिक दैट यू रियलाइज दैट अच्छा AP में है, तो यहाँ से यहाँ इनका एक लिंकेज बन गया एंड क्वेश्चन इज डन। इन दोनों का लिंकेज बना, B का वैल्यू आया, ओ यू रियलाइज अच्छा साइन का वैल्यू दिया हुआ है, एंड देन यू नीड टू रियलाइज द फैक्ट दैट साइन थीटा 1/2 सिर्फ दो ही टाइम पर होता है, एक 30 पर एक 150 डिग्री पे। तो 3 की लर्निंग्स हैपेंड। रिमेंबर कि एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, पेपर अगर क्लिक नहीं होती है। रिमेंबर साइन थीटा दो ही टाइम पर 30 होता है, 1/2 होता है, 130 एंड 150। 130 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली a नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड माय आंसर इज माइनस 1/2। अगेन आई वुड से राउंड 2 इजी क्वेश्चन, मॉडरेट, दैट इज नॉट डिफिकल्ट बट नॉट इजी एज वेल, थोड़ा सा वर्किंग है, थोड़ी सी थॉट प्रोसेस भी है। Okay, let's move to the next one. Again, slightly easy, but it does require a lot of thinking, and you need to be a little bit more patient and calm and more accurate. So you can't speed up and get the answer. So I would recommend it's a round 2, at least for me. If you're someone who's having very good with numbers and very good with cycles, you may even consider it doing it in the first attempt itself. But let's say मैंने क्वेश्चन देखा तो मैं सोचूंगा यार एटलीस्ट शायद आगे और डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए, जैसे लॉग का मिला था या ऐसे कुछ आगे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखकर करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट साइकिल्स। आपको यूनिट डिजिट की साइकिल्स पता है? दिस क्वेश्चन इज एन केक वॉक फॉर यू। 743 प्लस 85 ऐसा कुछ है, तो बड़े बड़े नंबर है। आई ऑलवेज रिकमेंड प्लस वाले साथ में रख दो, सब्ट्रैक्ट वाला बाद में। ऑल्सो चेक कि जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो बड़े होना चाहिए, मतलब a bigger number, छोटा number should be subtracted from bigger number, then only the policy of carry over works well, or else I'll showcase, I have showcased in the lectures as well कि अगर छोटा number माइनस बड़ा करोगे तो दिक्कत हो सकती है, and then you have to cross check कि बड़ा है कि छोटा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए शोकेस करता हूँ। let's say 3 माइनस 7 करना होगा आपको। ठीक है, तो आप इजीली क्या लिख दोगे यहाँ पे -4, तो यूनिट डिजिट -4 हो गया। बट 13 माइनस 7 करना होगा तो कितना हो जाएगा 6, तो देयर इज अ डिफरेंस इन द यूनिट डिजिट। दैट्स द कॉल व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जब आप बड़ा नंबर माइनस छोटा करते हो तो यूनिट डिजिट जैसा माइनस सब्ट्रैक्शन नॉर्मल चलता है वैसे ही होगा, बट छोटा माइनस बड़ा होता है। तो आई हैव टॉट यू इन द लेक्चर्स व्हाट यू नीड टू डू। ओके, लेट्स लुक इनटू दिस वन। अब ये क्या है, एटलीस्ट फॉर श्योर है 743 पावर 85 प्लस 987 की पावर 96 इज अ बिगर नंबर, फेयरली बिग नंबर। तो अब ये नंबर कुछ ऐसा होगा कि डैश कुछ ऐसा बड़ा सा एक नंबर होगा और वहां पर 3 की पावर 85 है, प्लस कुछ अगेन एक बड़ा सा नंबर होगा, प्लस 7 की पावर 96 है, माइनस कुछ बड़ा सा नंबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या 5 की पावर 37 है। ठीक है, और हमें सिर्फ और सिर्फ ये यूनिट डिजिट इस पोजीशन से मतलब है। ठीक है, तो टेक्निकली एंड में जाकर साइकिल आगे जाकर बात किस पे आ जाती है, यूनिट डिजिट के ऊपर ही। अब ये जो बड़े नंबर होंगे वो कुछ होंगे, बट एंड में जाके पार्ट कहां पे आता है, रोल किसका प्ले होना है कि 3 का यूनिट डिजिट क्या है व्हेन इट्स पावर 85। तो व्हाट्स द यूनिट डिजिट ऑफ 3 व्हेन इट्स पावर टू 85? लेट्स राइट द साइकिल ऑफ 3। 3 पावर 1 इज 3, 3 पावर 2 इज 9, 3 पावर 3 इज 27, तो यूनिट डिजिट 7 हो गया, एंड 3 पावर 4 इज 1। व्हाट अबाउट 7? मैं लिख ही देता हूँ ना, 7 पावर 2 9, 7 पावर 3 43, 7 पावर 1 ये आपको याद रखना भी, अगर आपको, और 5 का तो 5 ही चलता है।
ठीक है, अब क्या है ये 4n प्लस 1 4n प्लस 2 4n प्लस 3 4n। 85 क्या है, कितनी साइकिल्स हो जाएंगी 85 में, 80 तक तो 4 हो गई 20 साइकिल्स, 84 में एक और साइकिल हो गई 21, एक और बचा, तो सारी साइकिल्स खत्म हो गई, नए साइकिल से शुरू हुआ। तो दिस इज आवर यूनिट डिजिट 3 पावर 85 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 3। तो आई विल राइट इट हियर, ओके आई विल राइट इट हियर पेशेंटली एकदम। इट्स बेसिकली 3 पावर, सो बड़ा सा नंबर है कुछ, ओके एक बड़ा सा नंबर है यहाँ पे, और लास्ट में उसका यूनिट डिजिट है 3, ठीक है। 3 पावर 96, यहाँ पे कोई बड़ा सा नंबर होगा अगेन 7, 96 इज डिविजिबल बाय 4, 96 इज डिविजिबल बाय 4, तो चारों साइकिल्स पूरी फिनिश हो रही है। नंबर डिविजिबल बाय 4 मतलब लास्ट टर्म ऑफ द साइकिल, तो इसका लास्ट टर्म हो जाएगा ये, ठीक है। 5 पावर 5 की कोई भी पावर लगा तो आपको यूनिट डिजिट 5 ही आना है। तो अब आई गेस इट्स अ वेरी इजी जॉब, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके दिखा रहा हूँ, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। 1, ठीक है, एंड देन बड़ा सा नंबर कुछ, क्योंकि हमें बाकी सबसे मतलब ही नहीं है ना, हमें बाकी सबसे मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। इनको ऐड कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 माइनस 5 तो एक कैरी ओवर आ जाएगा यहाँ से, है ना, एक कैरी ओवर आ जाएगा यहाँ से। और कैरी ओवर कैसे आ रहा है, क्योंकि ये दोनों बड़े से नंबर है, तो आराम से एक कैरी ओवर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 है, एक कैरी ओवर आ गया तो 14 माइनस 5 9 इज माई आंसर। तो यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 9, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। हमने यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना था, साइकिल से फाइंड किया, फिर हमें रियलाइज होता है सर 4 माइनस 5 आ रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट का सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं तो क्या होगा, कैरी ओवर। इट्स एज सिंपल एज कि लेट्स से यहाँ लिखा हुआ है, लेट्स से कोई एक नंबर लिखा हुआ है 543, और रैंडम लिख रहा हूँ मैं, रैंडम लिख रहा हूँ 271 एंड देन 135, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन जब को दोनों को यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे 4, तो यहाँ से कैरी ओवर आ जाएगा ना। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट फैक्ट एज वेल, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो इलैबोरेट ओवर समथिंग बेसिक सो मच। फाइनल आंसर इज 9, माई फाइनल आंसर इज 9। आई होप यू गॉट दी 2 सेगमेंट्स कि पेशेंटली साइकिल्स चेक करो और फाइंड दी यूनिट डिजिट निकाला एंड देन एडिशन सब्ट्रैक्शन, परफेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, राउंड 2। व्हाई? बिकॉज थोड़ा सा पेशेंस में साइकिल निकालना चाहिए, कभी कभी गलती हो जाता है, साइकिल के वक्त यूनिट डिजिट देख नहीं पाते हम और गलत यूनिट डिजिट हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो आई गेस दिस वाज आल्सो इजी, फेयरली इजी, जस्ट नीडेड अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, कैन बी डन इजीली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। So 3 sin square x plus 12 cos x minus 3 equals to p, and p is having at least one solution, and I had to find the range of p. For me it's a round 3. By round 3 because I am not having that confidence, or I would the thought process कि अच्छा p का range कैसे निकलेगा यार यहाँ पर। तो मेरे लिए तो एटलीस्ट ये पेपर के वक्त राउंड 3 है, क्योंकि मेरे पास आगे क्वेश्चंस मुझे ऐसे दिख गए कि मैं देख पा रहा हूँ हाँ अरे काफ़ी इजी है, तो और राउंड 2 वाले ज़्यादा अच्छे हैं, तो दिस इज अ राउंड 3 फॉर मी। एंड हाउ टू प्रोसीड, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड वे, वेरी स्टैंडर्ड। पहले तो ये चीज़ आपको क्लिक होना चाहिए, 3 sin square x है, तो sin square x प्लस cos square x 1 होता है, तो sin square x तो cos के टर्म्स करो ना, एटलीस्ट लाइक टर्म्स ज़्यादा करो, तो sin square x लाइक टर्म्स ज़्यादा करो, याद रखा करो कि इक्वेशन है, तो अगर सारे cos में आ गए तो कुछ हेल्प हो सकती है। तो sin square x की जगह पे मैं रखूंगा cos 1 माइनस cos square x, तो 3 इंटू 1 माइनस cos square x प्लस 12। आई गेस सब ने ये तो कर ही लिया होगा, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप, यहाँ तक तो सब सेम ही जा रहे होंगे। इसके बाद थोड़ा सा दिक्कत आता है, 3 cos square x, ठीक है, प्लस 12 cos x माइनस 3 इक्वल्स टू p, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ओके, सारे टर्म्स उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 cos square x, ठीक है, माइनस 12 cos x, ठीक है, और माइनस p इक्वल्स टू प्लस p तो पॉजिटिव ही है, प्लस p इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या है कि यहां पर मैं एक्चुअल पेपर के अंदर भी स्टक हूं, ठीक है, और इतना ज्यादा एक्चुअल रियलाइज नहीं होता है ना, इसीलिए मेरे लिए राउंड 3 था, शायद मैं यहां तक पहुंच भी जाता, बट उसके बाद इमीडिएटली बहुत सारी चीजें मेरे को क्लिक नहीं होती, एंड देन थिंग्स वुडंट हैव बीन द सेम एज आई थॉट, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट यू कुड डू इज कि अगर आप रियलाइज करते, या तो आप p की रेंज यहीं पे निकाल सकते थे, ठीक है, थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं। आई हैव टॉट दिस इन वन ऑफ द लेक्चर्स एज वेल मेनी टाइम्स कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की मेथड सीखनी चाहिए, कि कोई एक इक्वेशन दी हुई है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर इन द सेंस, लेट्स से cos x का वैल्यू अभी यहाँ पे a होता, तो 3a स्क्वायर माइनस 12a कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो भी उसको एक होल स्क्वायर के टर्म में लिखना सीखो। मेकिंग इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ वेरी गुड स्किल सेट,
ठीक है, तो पहले तो a का कोफिशिएंट 1 करो। a का कोफिशिएंट 1 कैसे होगा, cos स्क्वायर x, या तो a का कोफिशिएंट 1 नहीं भी करो, बट हमें एंड ऑफ द डे ऐसे कुछ चाहिए जिसमें 2ab आर इन द रेफरेंस ऑफ -12/3 दैट इज 4। तो a का कोफिशिएंट 1 करना इज अ बेटर वे। अगर परफेक्ट स्क्वायर, मैं एक बार रेफरेंस के लिए समझाता हूँ, जैसे a स्क्वायर दिया हुआ है -4a कुछ दिया हुआ है प्लस p है ये, है ना, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ +p/3 है ये, ठीक है। तो अब एंड ऑफ द डे मुझे p/3 को हटाओ पिक्चर से और इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब a प्लस माइनस सम कांस्टेंट का होल स्क्वायर, उससे काफी हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो लेट्स से सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ cos स्क्वायर x 1 बनाते हैं। तो cos स्क्वायर x 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो ये -4 cos x हो गया, और ये क्या बचा +p/3 इक्वल्स टू 0। p/3 को वहीं रहने दो, cos स्क्वायर x -4 cos x है, तो ये क्या हो गया -2 इंटू 2, मतलब माइनस ये क्या है, ये 2ab वाला पार्ट है, ये पार्ट 2ab है, a कहाँ है cos x में, 4 cos x क्या है मेरा बेसिकली 2ab वाला पार्ट। तो cos x तो मेरे पास है ही, एक 2 भी हो गया, तो बचा क्या एक 2 और, तो b का वैल्यू कितना हो गया 2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मुझे b स्क्वायर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं 4 क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्योंकि ये 2ab है, ये -4 cos x -2ab है। तो अब आप देखिएगा मैं क्या किया है, माइनस cos स्क्वायर x -4 cos x प्लस 4 -4 प्लस p/3 इक्वल्स टू 0। अब आप अगर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, लेट्स कम हियर, है ना, cos स्क्वायर x, ये यहीं पे थोड़ा सॉल्व करते हैं, वहां पर इक्वेशन लेके जाऊंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये इसको अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ इतना पार्ट, ये है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, और b क्या है मेरा यहाँ पे 2 और a क्या है cos, तो ये हो जाएगा cos x -2 का होल स्क्वायर -4 प्लस p/3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मुझे क्या आंसर फाइनल यहां से क्या आता है, cos x -2 का होल स्क्वायर। आई डोंट नो इफ देयर इज अनदर बेटर सॉल्यूशन, बट दिस इज व्हाट आई कुड डू इट व्हेन आई वाज सॉल्विंग इट मैनुअली, ठीक है, 4 p/3, ठीक है। तो एक cos स्क्वायर x ये हमेशा पॉजिटिव होगा, पहली चीज डन, ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो गया, और cos x -2 का होल स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, ये इक्वल है, इफ मैं LHS की रेंज निकाल दूं तो वो RHS की भी रेंज होगी, cos x -2 का होल स्क्वायर का रेंज कितना हो जाएगा, दैट्स द क्वेश्चन आई नीड टू आस्क यू, इसका रेंज कितना हो जाएगा, क्योंकि मुझे एंड ऑफ द डे रेंज ही निकालनी है ना। cos x का रेंज क्या होता है -1 से 1, तो लेट्स से लोअर मोस्ट वैल्यू डाल दिया -1 -2 -3, तो -3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, तो एक 9 तो आ ही रहा है, +1 डालते हैं, क्योंकि रेंज cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच ही होती है, राइट। हाईएस्ट वैल्यू इट कैन गेट इज 1 एंड लोएस्ट वैल्यू इट कैन गेट इज -1 डाला, तो 1 -2 का होल स्क्वायर इज -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 का होल 1, तो लोअर मोस्ट वैल्यू हो सकती है 1 और हायर मोस्ट वैल्यू हो सकती है 9। तो बेसिकली ये रेंज किसकी है, 4 p/3 की, ठीक है। अब क्या है इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो बिल्कुल सबको आता ही होगा, ठीक है। 4 से सब्ट्रैक्ट कर दो पूरी इक्वेशन को, 4 सब्ट्रैक्ट करोगे पूरी इक्वेशन को तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -p/3, ये हो जाएगा 6, फिर क्या करोगे -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9, इक्वेशन साइन चेंजेस क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई किया है, और ये हो जाएगा -3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा वेट 5, ये 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 5 हो जाएगा, अपॉलॉजीज, ठीक है, 5 हो जाएगा, आई डिड अ कैलकुलेशन मिस्टेक। अगर -4 करूंगा तो ये तो -3 हो गया, बट 9 - 4 5 होता है, -3 से करा तो ये -15 हो गया, ठीक है। आई वुड लाइक टू राइट इट इन ऑर्गेनाइज्ड वे, दैट इज p का रेंज इज फ्रॉम -15 टू +9, तो p बिलोंग्स टू इक्वल टू, है ना, तो क्लोज ब्रैकेट, दिस इज माई फाइनल आंसर। सो आई वुड कंसिडर दिस एज राउंड 3, और एक दो क्वेश्चन तो ऐसे निकलते ही है जो थोड़े से डिफिकल्ट साइड पे होते हैं, जिसमें थोड़ा सा वर्किंग है, ये थॉट प्रोसेस क्लिक होना इज समथिंग आई कंसिडर एज राउंड 3, not this, and making it a perfect square itself is a higher level, like at least you need a lot of practice to crack this sum up. For me at least this is my opinion, for maybe you are very good with it, then great, good to go with the trigonometry part, but yes, final answer is -15 से 9. The key learning is this perfect square part. Make sure that you learn this, okay, 100% make sure that this is a very good skill set that you know, making it a perfect square. Second skill set, range निकालना from such a term, cos x -2 का होल स्क्वायर की रेंज निकालना, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड स्किल सेट, ओके, डन। फाइनल आंसर -15 से 9 तक, आई होप यू गॉट इट, okay, thank you. Let's move to the next one.
I would consider this in the category of round 2, definitely round 2, but because there are things that we are not able to click immediately. And then again, geometry is not everyone's affinity. Okay, not everyone has that comfort zone with geometry, and they end up, thinking about kaun sa property hai, because there is a bundle of properties, and then because there's a lot of things, we end up getting shuffled into our own thoughts, and that's when I would consider geometry almost easy ones as a moderate itself, because it's my liking to the chapter. But if you are really good with geometry, you may have done with round 1, but still let's consider it as round 2. Let's skip it, move to the easy ones and try it in the second round when you are attempting it. Now minimum area of ABCD we have to find. तो ABCD कौन सा है? एक तो ये एरिया, ये okay. तो let's, because I will use AOD का एरिया and BOC का एरिया, so let's consider some variable. Okay, let's consider this as x or this as y. And it's a very common, or PQ or any variable you can take. Okay, x और ये y. तो इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD का एरिया हो गया x और इस पर्टिकुलर ट्राइंगल BOC का एरिया हो गया y. तो हमें मिनिमम एरिया किसका पूछा है? x प्लस y. ये मिनिमम एरिया कौन सा हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस 4 प्लस 9, है ना. अब द थिंग इज, इफ यू रियलाइज दैट कि x प्लस वाई मिनिमम होना चाहिए, बाकी दो चीज तो कांस्टेंट हो चुकी है. Now if I want to minimize to sum, how to minimize the sum? First thing that is, now x plus y is minimum where x and y are positive real numbers. That's the fact you need to click. और भैया बार बार आप पॉजिटिव रियल नंबर से मुझे दो ही चीज याद दिलाते हो, AMGM एंड वो इंटीग्रल सॉल्यूशंस वाला. तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स है एंड आई हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम, तो आपको AMGM से याद होना चाहिए, ये तभी मिनिमम होता है व्हेन x इक्वल्स टू y. रिपीटिंग इट, रिलेशनशिप लिखता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है. x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स वाई की पावर 1/2. ठीक है. अब अगर मुझे इसको, ये मिनिमम तब होता है जब यहां से इक्वल टू का साइन आ जाता है. अब ये इक्वल टू तभी होगा व्हेन x इक्वल्स टू वाई. आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, वरना ऐसे नॉर्मली भी आप चेक कर सकते हैं. व्हेन x इक्वल्स टू y होगा, या तो सिंपल आप इसको ऐसे नोट डाउन कर लीजिए ना, व्हेन x प्लस वाई को मिनिमाइज करना है मुझे, तो x शुड बी इक्वल टू y, देन ओनली द सम विल बी मिनिमम. सम मिनिमाइज करना है, प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो जाता है, सम मिनिमाइज हो जाता है. ठीक है. और प्रोडक्ट मैक्सिमम का भी आपको पता ही होगा, x इंटू एक्स. तो ठीक है, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो x प्लस वाई कैन बी मिनिमम एट x व्हेन x इक्वल्स टू y. तो आई वुड बी रिप्लेसिंग इट विद x इटसेल्फ, है ना. नो अदर वर्क, आई विल बी राइटिंग हियर 2x प्लस 4 प्लस 9. तो अब मुझे x और x का वैल्यू चाहिए, एंड वंस आई फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, आई विल बी गुड टू गो. नाउ कमिंग टू अनदर प्रॉपर्टी दैट यू नीड टू, चलो आई विल डिराइव द प्रॉपर्टी फॉर यू. लेट्स से ये हो गया थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा. ये 180 माइनस थीटा है, राइट. ये इस लाइन पर ये थीटा है, तो ये इस साइड कौन सा है? 180 माइनस थीटा. तो ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट, 180 माइनस थीटा. लेट्स कंसिडर OC एज A, let's consider OB as B, let's consider OA as C, let's consider OD as D. तो A B C D ये लेंथ है, लेंथ बोला है. OC का लेंथ A है, OB का लेंथ B है, या मैं ऐसे लिख देता हूँ OA के साथ A लिख देता हूँ, या तो डजेंट मैटर, आप ABCD किसी भी ऑर्डर में लिखो, बट लेट्स से ABCD, जहाँ पे O से काउंट कर रहे हैं हम, है ना. O कौन सा है? सेंट्रल मोस्ट पॉइंट. सेंट्रल मोस्ट पॉइंट लिखा नहीं है शायद मैंने यहाँ पे, बट लिख देता हूँ O इज द सेंटर मोस्ट पॉइंट, है ना. काफी सारा हेक्टिक हो गया, बट ऑब्जर्वेबल है, ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है. तो OB OC OA OD की वैल्यू मैंने ABCD ले ली. नाउ लेट्स प्रूव इट, लेट मी प्रूव योर थ्योरम इटसेल्फ हियर. ठीक है. तो लेट्स से ABCD, ठीक है, शुड बी इक्वल टू, और वरना ऐसे देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, area of triangle will be sir half into AB sin theta. Remember this formula, half into AB sin theta. AD OD है ना, AOD AD sin theta. ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या हो जाएगा? AOB. लेट्स फाइंड ईच वन ऑफ देम. हाफ इनटू, ये रिक्वायर्ड नहीं है बट मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान दे लो, आपको काम आ जाएगा. दूसरा फैक्ट आपको रियलाइज होता है कि हाफ AB sin थीटा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. अभी तक याद नहीं था. BOC का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू BC sin थीटा. अच्छा, साइन थीटा कैसे लिख दिया सर? साइन 180 माइनस थीटा. लेट्स से मैंने यहाँ साइन 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है. आपको रियलाइज होना चाहिए साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है. तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इटसेल्फ. ये आपको प्रॉपर्टी नहीं याद हो तो आपने याद कर लिया. साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा.
ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब एरिया ऑफ बचा कौन सा है, COD है ना, एरिया ऑफ COD हाफ इंटू CD साइन थीटा। द प्रॉपर्टी गोज है, अगर आपको रियलाइज होता है ना, मैं दो कौन से साथ में लिख रहा हूं, आई विल बी मर्जिंग द टू, AOD एंड AOD, और ये कौन सा है, BOC, AOD एंड BOC को मर्ज करते हैं। अगर आप इन दोनों को साथ में लिखते हैं तो आपको क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, मतलब मैं पहले इनको एरिया इन दोनों को साथ में लिख रहा हूं तो क्या आएगा, ADBC, तो ABCD साइन थीटा का स्क्वायर है ना। और दूसरी साइड, अच्छा लेट मी राइट इट विद डिफरेंट कलर ताकि आपको एटलीस्ट फॉर्मूला तो एकदम बोल्ड में याद रहे, ठीक है। तो ABCD साइन थीटा का स्क्वायर, सर 1/2 रह गया, लिख देता हूं 1/4, 1/2 दो मल्टीप्लाई आ रहा है। दूसरी साइड क्या आ रहा है, जब मैं AOB, पहले मैंने ये दोनों लिए हैं, अब ये दोनों ले रहा हूं, AOB एंड COD, AOB लूंगा तो भी सेम आ रहा है, ABCD 1/4 साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको कुछ रियलाइज हो रहा है तो मैंने आपके सामने एक प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा था ताकि आप इसको याद रख सके। Isn't that both are equal? Yes sir, both are equal. So property is product of areas of two opposite triangles in a convex quadrilateral. In a convex quadrilateral, when diagonals intersect with each other, तो ये जो areas के product है वो इन दोनों के product के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ area of triangle AOB इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB लिखना है, कुछ फर्क नहीं, हाँ AOB इंटू COD इज इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD है ना, AOD इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। दिस इज द प्रॉपर्टी दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। आई जस्ट प्रूव्ड इट इन फ्रंट ऑफ यू, इवन दो द प्रूफ वाज नॉट रिक्वायर्ड बट आई जस्ट डिड, सो एटलीस्ट यू कुड रिमेंबर दिस वन, है ना। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला नाउ एज अ प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी अब याद हो जानी चाहिए, अब से आप लेके जा रहे हैं अपने साथ एक प्रॉपर्टी यहाँ से, ठीक है। तो ये आपने ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो। ये वाला पार्ट हटाते हैं, आई जस्ट प्रूव्ड अ थ्योरी इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपको रियलाइज करना चाहिए कि मुझे 2x चाहिए, इजंट दैट x स्क्वायर, AOD और AOC कौन सा है, AOD है x, BOC कौन सा है x, तो x स्क्वायर, x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू कौन सा, 4 इंटू 9 36। तो x का वैल्यू कितना हो गया 6, सर -6 क्यों नहीं, अरे एरिया है बच्चों, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया पॉजिटिव हो सकता है। तो x का वैल्यू 6 हो गया। अगर x का वैल्यू 6 हो गया और मुझे मिनिमम एरिया तभी मिलता है जब x इक्वल्स टू x, तो वो तो मैंने फाइंड कर ही लिया। वरना आप इसको x इंटू वाई इक्वल्स टू 36 रख दो और ट्राई टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x देयर, x एंड y, यू विल रियलाइज दैट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 6, तभी आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y मिलता है। तो x इक्वल्स टू 6 डाला मैंने, तो 12 प्लस 13 इक्वल्स टू 25। दिस इज माई फाइनल आंसर. This is my final answer. So we had to use one property which I proved it in front of you, that area of product of in a convex quadrilateral. एक convex quadrilateral है, diagonals intersect कर रही है, तो जो opposite area का product है वो इन दोनों के product के बराबर होता है. तो 4 into 9 is equals to x into x. ये product equal है, तभी area of AOB into area of COD equals to area of AOD into area of BOC. ये वाला प्रॉपर्टी लिख लिया. दूसरा फैक्ट याद रखना, ये कभी कभी अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है. तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि x प्लस वाई मिनिमम तभी होगा जब x और y पॉजिटिव रियल नंबर्स है, और अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो व्हेन x इक्वल्स टू y गिव्स मी द मिनिमम वैल्यू ऑफ x और y. ठीक है. बेस्ट x स्क्वायर इक्वल्स टू 36, x इक्वल्स टू 6, 2 प्लस 12 प्लस 13 25. तो होप यू गॉट द थ्योरी एज वेल एज द फैक्ट दैट आंसर हमारा 25 है. Easy, not easy per se. ये प्रॉपर्टी याद रहेगा. फर्स्ट थिंग, यू आर गुड टू गो विद द क्वेश्चन. रियलाइज करना कि x इक्वल्स टू y. ठीक है. So these two thoughts are not something very regular with our notes as well. नोट डाउन कर लो पहली चीज. तो शायद इसको राउंड 2 और नहीं क्लिक हो रहा है कि अच्छा ये प्रॉपर्टी यूज हो सकती है और x इक्वल्स टू y, देन इवन स्किप इट. डोंट इवन कंसिडर इट इन राउंड 2. नेक्स्ट पे बढ़ जाओ. ठीक है. So I hope we are done with this one also. Let's move to the next one. Thank you. ओके, सो आई वॉन्ट टू फाइंड दी हाइएस्ट रेशियो. अब ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी सा है अगर समझ आ जाता है, बट एट द सेम टाइम इट कैन बी ट्रिकी एज वेल बट ईजी एज वेल. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अ लिटिल बिट. ऑप्शंस वर आर सेवियर. हमारे पास जो ऑप्शंस थे उसमें ऑप्शन ए था 1000 एंड देन एवरी ऑप्शन वाज लेसर देन 1000. सो आई गेस पेपर हैड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन और आई वुड से स्लाइटली ट्रिकी, बट द ऑप्शन मेड देम क्वाइट ईजी फॉर अस. So coming to the question, I have to find the highest ratio possible of a 4-digit number, that is ऊपर 4 digit और नीचे उनके sum of the digits है.
आई गेस ट्राई विद डिफरेंट वैल्यूज. द फर्स्ट वैल्यू कैन थिंक ऑफ एनी वैल्यू 999 अपॉन हाईएस्ट. इसका मैक्सिमम करना है मुझे, राइट? इसको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. तो व्हाट आई कैन डू, मैक्सिमाइज द न्यूमरेटर, मिनिमाइज द डिनोमिनेटर. तो अगर पहला थॉट आता है सर मैक्सिमम न्यूमरेटर 9999 अपॉन 9 प्लस 9 प्लस 9, तो 9999 डिवाइडेड बाई 36, तो कुछ वैल्यू आएगी. बट अगर आप थोड़ा एकदम ना इमीडिएटली आंसर पे मत पहुंचो, थोड़ा और कंक्लूजन दो, थोड़ा और एफर्ट डालो, थिंक ऑफ मोर हिट एंड ट्रायल. इफ यू रियलाइज, लेट्स टेक द रैंडमेस्ट वैल्यू दैट इज 1000. अगर मैं लेट्स से 1000 लेता हूं, क्योंकि ऑप्शन में भी था वो रेशो, तो 1000 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 0. अगर ऑप्शन को देखकर ही अगर आप रियलाइज करते अरे मैं 1000 ला सकता हूं, तो दिस इज द माय आंसर. ऑप्शन को देखा और रियलाइज किया अरे 1000 ऑप्शन में 1000 आ रहा है, बाकी सब तो नीचे छोटे ही है, तो मैं इसको टिक करके आगे बढ़ूंगा फॉर अ रीजन. वहां मैक्सिमम रेशियो पूछा था ना, तो नीचे और नीचे वैल्यूज पे जाने की जरूरत नहीं है. नाउ कमिंग टू दी कॉन्सेप्चुअल पार्ट कि why 1000 can only be the maximum ratio. अगर if you realize it's a very logical thought process. Remember 1000 मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 1000a प्लस 100b प्लस 10c प्लस d, है ना, इस रेशियो को अपॉन a प्लस b प्लस c प्लस d. ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. अगर इफ यू रियलाइज इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली 1000 से छोटी ही होगी. ठीक है, अब चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल रियलाइज इट विल बी मैक्सिमम व्हेन ऑल थ्री ऑफ एम आर 0 एंड एनी वैल्यू यू कैन टेक ऑफ ए. Any value you can take of a. So I guess this one is more of a hit and trial than any type of logic I would be applying. Hit and trial and referring to options. Hit and trial and referring to option. My final answer would be, I wouldn't be teaching any great theory in this one because this is a pretty direct one. ठीक है, तो my final answer will be 1000, option A. क्योंकि ऑप्शंस भी मेरे साथ है. अब मैं चाहे तो ए की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ. यू कैन टेक एनी वैल्यू. 8000 अपॉन 8, 8 प्लस 0 0, 9000 अपॉन 9. आपको हमेशा रेशो मैक्सिमम ही आना है, दैट इज 1000. ठीक है, ऑल्दो मैंने 1000 अपॉन 1 लिया बिकॉज सबसे इजी वैल्यू है. ठीक है, वाई डिड आई गेट दिस मिनिमम रेशो. अब मैं बताता हूँ. एक्चुअली डिविजन जो न्यू डिनोमिनेटर है उसका बहुत इफेक्ट होता है. अगर थोड़ा सा भी वैल्यू बढ़ता है ना, तो इट कैन लीड टू अ ग्रेट डिविजन इनटू द वैल्यूज. तो डिनोमिनेटर को लीस्ट करने की कोशिश करो, और लीस्ट डिनोमिनेटर तब आता है जब रेस्ट ऑफ 3 वैल्यूज आर 0, फिर 1 वैल्यू में 1 डाल दूँ, आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट. फाइनल आंसर 1000. हिट एंड ट्रायल करो, कॉन्फिडेंट रहो, ऑप्शंस को रेफर करो एंड लीड टू योर आंसर. सो इट कैन बी राउंड 1 एज वेल इफ यू आर एबल टू क्लिक द फैक्ट दैट अरे 1000 ऑप्शन में दिया हुआ है, करो आगे बढ़ो. इट कैन बी राउंड 2, बट आई वुड से बी कॉन्फिडेंट. अगर आता है, अब इस पेपर के वक्त से मैं पेपर में बैठा हूं और मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, उस टाइम पे अगर मुझे क्लिक हो गया अरे 1000 अपॉन 1, अगर नहीं हो रहा है, बार बार मैं डाइसी हूं, कुछ ज्यादा ही थ्योरी में घुस चुका हूं, देन मूव नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अभी कंक्लूजन नहीं दे पा रहा हूं, शायद काम हेड से बाद में आऊंगा, 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आऊंगा तो और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो तब अटेम्प्ट कर लो. बट अगर डिसीजन नहीं बनता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आगे बढ़ जाया करो. Thinking over something that you are not able to click in 1 or 2 or 3 times, then you're gonna keep thinking about the wrong things as well. It may happen. वो सब चीज़ों का टाइम फर्स्ट राउंड नहीं होता है, वो राउंड 2 में होता है, when you want to put over some more effort into one question. तो राउंड 1 में तो एटलीस्ट अगर नहीं सोच पाए तो 2 या 3 अटेम्प्ट में आगे बढ़ो. अगर आ पाता है 30 सेकंड के अंदर अंदर मार्क करो, गुड टू गो. Okay, let's move to the next question. Thank you. Coming to the next one. I guess this is also, I would consider if you are doing at least functions or quadratics, this question is a doable one. If you haven't done them so well, or if you are not confident enough, then skip this one because you may get shuffled. अरे minimum value कैसे find करना है? देखो जब direct कुछ पूछा जाता है ना, it's very easy to at least come to a point. But जब minimum maximum होता है, तो we need to put at least more extra effort. तो जब भी ऐसा कुछ देखो ना, minimum, maximum, और लग रहा है कि हाँ यार इसका वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, देन यू कैन स्किप द क्वेश्चन. बट विल डू इट वेरी सिस्टमैटिकली. ठीक है, बहुत इजी, मतलब एकदम काफ़ी इन्फॉर्मेशन था. एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इट्स अ बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. दूसरा था -2x, एक लीनियर टर्म है जिसमें बोला गया है कि a, b सेटिस्फाई है, तो ये ए बी यहाँ पर भी है, रियलाइज दैट, एंड इट पासेस थ्रू -2, 0. वन ऑफ द रूट्स है -2. इवन इफ क्या पता काम आ जाए, बट आपको रियलाइज करना चाहिए कि अगर y 0 हो रहा है, मतलब अगर फंक्शन 0 हो रहा है, तो -2 एक रूट है, नहीं तो एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है दैट f ऑफ -2 इक्वल्स टू 0. सेकंड, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, अगर a, b पे लाई करता है, ठीक है, दैट ये, तो बस सिंपल सी बात है, g ऑफ a इक्वल्स टू b, तो -2a इक्वल्स टू b. सिंपल पहला चीज.
अगर -2a इक्वल्स टू बी आ गया है, लेट्स कम टू हियर, मतलब एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ गई। और आई कैन ऑल्सो से -b/2a इक्वल्स टू 1, आई कैन ऑल्सो डिराइव फ्रॉम हियर -b/2a, मैं -2a को नीचे ले आऊंगा तो -b/2a इक्वल्स टू 1। ओके सर, ये -b/2a तो देखा देखा लग रहा है, यस एग्जैक्टली, -b/2a वो नहीं हो जाता इस क्वाड्रेटिक के लिए मिनिमम वैल्यू। सो ये फैक्ट्स आपको दिमाग में क्लिक होने चाहिए जब आप थोड़ा बहुत अगर प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ। सो -b/2a इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे मिनिमम वैल्यू पूछा है, फंक्शन प्लस 9a प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू भी तो एट -b/2a होता है, ये भी याद आना चाहिए अब। बट पहले लेट्स यूज दिस इन्फॉर्मेशन, -2, 0 इक्वल्स टू ये, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, तो एफ ये अगर लाई करता है तो एफ ऑफ -2 इक्वल्स टू 0, और आई वुड रादर से a का वैल्यू -2 प्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 4a -2b प्लस c। अच्छा, ये 4a -2b है, एक रिलेशनशिप है मेरे पास, -2a इक्वल्स टू b, तो b की जगह मैं -2a रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 8a प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना, 8a प्लस c इक्वल्स टू 0। तो एक और रिलेशनशिप आ गया मेरे सामने, 8a प्लस c इक्वल्स टू 0। एक ये पता, इससे मैं वो भी कह सकता हूँ कि 8a इक्वल्स टू -c, एक इन्फॉर्मेशन ये पता चल गया, -2a प्लस b इक्वल्स टू ये आ गया, और एक ये पता है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन वॉज फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x प्लस 9a प्लस 1, है ना। तो अगर मुझे मिनिमम वैल्यू फंक्शन की निकालनी है तो एक चीज आपको रियलाइज होना चाहिए कि या तो आपको ये याद होगी -d/4a पे मिनिमम वैल्यू मिलता है fx का, -d/4a नहीं भी आता है तो आपको ये रियलाइज करना चाहिए f इक्वल्स टू -1, f एट x इक्वल्स टू -b/2a, क्योंकि देखो ये तो कांस्टेंट है, a तो एक कांस्टेंट होता है यहाँ पर ना, तो a का आप वैल्यू कुछ भी नहीं कर सकते, 1 को कुछ नहीं कर सकते, f ऑफ x को ही मिनिमाइज कर सकते हो। f ऑफ x लाइज मिनिमम एट, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ओके, तो f ऑफ x इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू -b/2a, और -b/2a की वैल्यू कितनी है 1, तो मुझे f ऑफ 1 चाहिए बेसिकली वहां पे, तो f ऑफ 1 प्लस 9a प्लस 1 इज वॉट वी हैव टू फाइंड। f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 डालना है मुझे बेसिकली इसमें, तो a प्लस b प्लस c प्लस 9a प्लस 1। अच्छा, b का वैल्यू तो अभी मैंने बताया था -2a है, b का वैल्यू -2 है, सब्सटीट्यूट करो, कुछ ना कुछ तो यूज करना ही पड़ेगा, इस इंफॉर्मेशन को यूज किया मैंने, तो ये हो जाएगा a -2a प्लस c प्लस 9a प्लस 1, -2a प्लस a तो -a और ये 9a है, तो फाइनल मेरे पास बच रहा है 8a प्लस c प्लस 1। अरे 8a प्लस c प्लस 1, 8a प्लस c तो यहाँ भी आया था, दैट इज 0, तो मेरा आंसर हो जाएगा 0 प्लस 1 एंड माई आंसर इज 1। ठीक है, तो काफी सिस्टमेटिक, काफी ऑर्गेनाइज। देखो 2-3 इन्फॉर्मेशन ही थी, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन यूज कर करके आंसर निकालना था। f ऑफ 1 प्लस 9a प्लस 1, 8a प्लस c प्लस 1, यहां तक अगर पहुंच गए रियलाइज किया अरे 8a प्लस c का वैल्यू 0 था, 8a प्लस c का वैल्यू 0 था, 0 प्लस 1, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। सर मिनिमम कैसे हुआ, रिपीट करिए। मिनिमम अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax² प्लस bx² c, ये बड़ी जनरल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका मिनिमम वैल्यू लाइज एट -b/2 है। यू कैन यूज द इन्फॉर्मेशन दैट d - d/4a पे लाई करती है, बट d के लिए फिर वही b² - 4ac निकालना पड़ेगा, तो रिलेशनशिप यूज करके आ सकता है। देयर आर मल्टीपल वेज, आप -d/4a यूज कर सकते हो, आप डेरिवेटिव यूज कर सकते हो, आप ग्राफ यूज कर सकते हो, बट दिस इज द मोस्ट simplified and the most organized answer I could get when I was trying. तो आप देख सकते हैं a plus b plus c plus 9a plus 1, 8a plus 1. Graphical method can also be good if you are good with graphs. You realize that it is a symmetric graph. सिमेट्रिक ग्राफ है, -2, 0 पे है, फिर 1, अब जो भी होगा वैल्यू, अब 1 पे तो है, तो दैट इज द मिनिमम वैल्यू। तो इक्वल डिस्टेंस पर सेकेंड रूट लाई करेगा, 2 रूट मिल गए, आप क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल वेज, बट दिस इज द वन वेरी इजी। एक रिलेशनशिप आया, एक रिलेशनशिप यहां से आया, इस रिलेशनशिप को हमने 3 बार यूज किया, यहां पे प्लेस किया, यहां पे प्लेस किया, और इस रिलेशनशिप के लिए हमको वो पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन लाइज एट 1। तो एट एफ ऑफ 1 का वैल्यू हमको पता है, एफ ऑफ 1 निकाला, यूज किया, एफ ऑफ 1 मतलब एक्स का वैल्यू 1 डाला, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी प्लस 9a प्लस 1। So I'm repeating it again and again so that you can register it inside your head that there are ways to even pick up concepts, pick up the linear terms. ये सब आपको more practice के वक्त करना चाहिए। जब भी आप practice करो तो be alert with lot of things written on the page paper. Okay, ये relationship है, ये relationship है, let's merge them if I'm able to reach to the next step ahead. तो
keep on doing that. When you're doing that in your practice, then only you'll be able to have that idea or moving ahead strategy in actual paper. So make sure you do that. So final answer for this one is 1. Okay, so let's move to the next one. Thank you. बहुत लेंदी है, बट अगर मैंने जो बार बार आपको रिपीट किया है कि जब भी एक लाइन पढ़ते हो तो उस इन्फॉर्मेशन को पेपर नोट डाउन करो. दिख रहा है कि हाँ यार इंग्लिश एंड हिंदी तमिल है, तो समवेयर सेट थ्योरी है, तो जल्दी से वेन डायग्राम बना दो एंड देन स्टार्ट प्रोसीडिंग विद इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. और आपका हमेशा कुछ नोटेशंस होना चाहिए, ABCDEFG, मतलब जैसे मैं जनरली सेंट्रल पॉइंट को G रिप्रेजेंट करता हूँ, इसे B मतलब A मतलब सिर्फ अभी के लिए ये वाला पार्ट है ना, C. ओके, B हो गया, C कौन सा, C. लेट्स से इसको ले लिया मैंने D, इसको ले लिया E, इसको ले लिया F. तो ये वाला एरिया FD है, ABCD. इतना इन्फॉर्मेशन लिखने की आदत डालो. अब ठीक है, स्टार्टिंग विद इन अ सिटी ऑफ 50% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज. एग्जैक्टली वन लैंग्वेज कौन सा है, ABC. तो एग्जैक्टली वन वाला पार्ट हो जाएगा A + B + C इज इक्वल्स टू कितना है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन. आपको एक और चीज़ याद आना चाहिए, एटलीस्ट 1 माइनस एटलीस्ट 2 गिव्स मी एग्जैक्टली 1. तो शायद एटलीस्ट 2 की इन्फॉर्मेशन हो आगे. देखो मेरा पॉइंट ये है, लर्निंग ऑफ द क्वेश्चन ये है कि जब मैं ये लाइन रीड कर रहा हूँ ना, इन द सिटी ऑफ 50% ऑफ द पॉपुलेशन, आई शुडंट बी रीडिंग द एंटायर क्वेश्चन एंड कमिंग बैक. आई शुड रेड द फर्स्ट लाइन, रोट द इन्फॉर्मेशन, नो मैटर वॉट, इवन इफ यू आर राइटिंग इट इन द फर्स्ट टाइम. ठीक है, स्पीकिंग एग्जैक्टली वन लैंग्वेज अमंग HET. ठीक है, तो HET हिंदी इंग्लिश तमिल, ठीक है, दिया हुआ है. ठीक है, मतलब आई रोट HET बट इट्स लाइक हिंदी इंग्लिश एंड तमिल, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज अमंग हिंदी इंग्लिश एंड तमिल. while 40% of the population can speak in at least 2 language. 40% of the population can speak in at least 2 language. DEF ये तो है इंटरसेक्शन ऑफ HET, मतलब हिंदी एंड तमिल, इंग्लिश एंड तमिल, तमिल एंड इंग्लिश. ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट प्लस G विल गिव मी एटलीस्ट 2. एटलीस्ट 2 कौन सा हो जाएगा, D + E + F + G इज इक्वल्स टू 40%. मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी लिखनी है. डोंट नीड टू गो अहेड, पहले इस लाइन को लिखो. मोर ओवर द नंबर ऑफ पीपल हु कैन नॉट स्पीक एनी ऑफ दिस लैंग्वेज इज ट्वाइस द नंबर ऑफ. अच्छा, यहाँ से एक यूनियन का फॉर्म आ जाएगा. आपको ये चीज़ पता है, लिखने के बाद यहाँ पे देखना चाहिए कि इससे कुछ और कंप्यूट हो सकता है कि हाँ. तो यू रियलाइज दैट यूनियन मतलब A + B + C + D यूनियन, और आई वुड से एटलीस्ट 1, मतलब पूरे सर्कल का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से. एटलीस्ट 1 का वैल्यू हो जाएगा 50 + 40 90%. तो ये पूरे को शेड कर दूंगा तो उसकी वैल्यू 90% है. ठीक है, परफेक्ट. Moreover, the number of people who cannot speak any of these languages is twice the number of people who cannot speak none of the language. ठीक है, मतलब none of the language is twice the number of people who speak all the number. ठीक है, तो moreover the number of people who cannot speak any of them. तो ठीक है, एक और चीज दिया हुआ है, none is equals to twice the all the 3 language. अच्छा, none कैसे निकालते थे, ये भी आपको रियलाइज होना चाहिए. टोटल इज इक्वल्स टू यूनियन प्लस नन, है ना. ये सब चीजें फॉर्मूलेस तो बहुत फिंगर टिप्स पे हो जाने चाहिए. अब टोटल का वैल्यू कितना है मेरे पास, 100%. ऑब्वियसली ये परसेंट में डील कर रहे हैं, 100%. यूनियन का वैल्यू 90% है. नन मुझे पता नहीं है, बट यहाँ से नन आ जाएगा एंड नन का वैल्यू हो जाएगा 10%. ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन से हमें जी का वैल्यू आ जाएगा. 10% इक्वल्स टू 2G, 10 इक्वल्स टू 2G, तो जी का वैल्यू हो गया 5. जी का वैल्यू होगा 5, तो मैं इमीडिएटली यहां से जी को 5 बना दूंगा. ठीक है, बाकी जगह पे भी जी चाहूं तो मैं 5 लिख सकता हूं, मतलब D + E + F की वैल्यू 35 हो गई. ये सब चीजें आपको आधे क्वेश्चन के इसमें ही करना है, नीचे तक नहीं जाना है. ठीक है, इसके बाद क्या है, इफ 52% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक इन हिंदी. तो हिंदी के लोग कौन कौन से हैं. अच्छा, ये 52 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखो. और क्या दिया हुआ है, A + E + D + 5. A + E + D + 5 कितना दिया हुआ है, 52%. ठीक है, ये 52% दिया हुआ है. मुझे यहाँ से क्या क्या मिल सकता है, कुछ नहीं. आज तक बस इतना पता चल गया है कि A + E + D + 5, जी नहीं लिखूंगा, आप 5 लिखूंगा. कैन स्पीक आर 52%. ये हिंदी का पूरा सर्कल डिनोट करता है ना, A + E + D + 5. ठीक है, एंड 25% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक इन एग्जैक्टली वन लैंग्वेज. अच्छा, एग्जैक्टली वन वाला, अच्छा वेट, नो, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज अमंग इंग्लिश एंड तमिल. इंग्लिश एंड तमिल, अमंग इंग्लिश एंड तमिल, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज अमंग इंग्लिश एंड तमिल. तो अच्छा, एग्जैक्टली वन वाले कौन कौन से हैं अमंग इंग्लिश एंड तमिल. या तो ये बी है, ये बी ही है जो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं, या तो वो सिर्फ सी है. तो B + C का वैल्यू मुझे दिया हुआ है नेक्स्ट लाइन में.
ठीक है, तो अमंग इंग्लिश एंड तमिल, दिस लाइन इज द ओनली कैच दैट बिकम्स स्लाइटली डाइसी, बाकी सब तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन था। दैट 25% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज अमंग इंग्लिश एंड तमिल। तो बी एंड सी इज दी एग्जैक्टली वन पीपल, बिकॉज यहाँ पे वो एक से ज्यादा है, यहाँ पे भी इंग्लिश और तमिल दोनों है ना, बट उनको सिर्फ एग्जैक्टली वन चाहिए, या तो इंग्लिश या तो तमिल। ठीक है, तो हाँ इंग्लिश एंड तमिल, बी प्लस सी का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 25%। अच्छा, नेक्स्ट थिंग आपको रियलाइज होना चाहिए, बी प्लस सी, ए बी प्लस सी 25, ये 25% है, ये 50% है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से, आपने बी प्लस सी यहाँ रख दिया तो ए का वैल्यू हो गया 25। ठीक है, आप ये रियलाइज होना चाहिए 25% है। अब ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड देन द परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन हु कैन स्पीक इन हिंदी एंड इन एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, वन मोर लैंग्वेज अमंग ई एंड टी, वन मोर लैंग्वेज अमंग ई एंड टी। तो हिंदी वाले कौन कौन से, पूरा सर्कल, बट दे शुड ऑल्सो स्पीक ईदर हिंदी, इंग्लिश और तमिल। तो इधर ई और डी का हमें ई प्लस डी का सम चाहिए, ई प्लस डी का सम चाहिए। ई प्लस डी यहाँ पे भी था, ए का वैल्यू मैंने लिख दिया है। दिस इज द पावर ऑफ राइटिंग इंफॉर्मेशन, जस्ट रीडिंग एवरी लाइन। तो ए का वैल्यू 25% मैंने यहाँ प्लेस किया, ई प्लस डी यहाँ से आ जाएगा, तो ई प्लस डी प्लस 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 52%। आई बी रिपीटिंग इट, डोंट वरी। तो ई प्लस डी कितना हो जाएगा, ई प्लस डी इज इक्वल टू 30, 52 माइनस 30, 22। माई फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 22%। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, 22% इज माई फाइनल आंसर। रिपीटिंग इट, मैंने फर्स्ट लाइन से ही सब कुछ नोट डाउन करना शुरू कर दिया था। इन अ सिटी 50% ऑफ पॉपुलेशन कैन स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज अमंग हिंदी, इंग्लिश, तमिल। तो ए बी सी डी ई एफ जी है सारा मेरा, मैंने डायरेक्टली पहले एग्जैक्टली वन लिखा। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 50% है। देन मुझे दिया हुआ था कि 40% ऑफ पीपल कैन स्पीक इन एग्जैक्टली टू, एटलीस्ट टू लैंग्वेज। तो एटलीस्ट टू वाले डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी था, वो मैंने 40% लिखा। मुझे उससे रियलाइज होता है कि एटलीस्ट वन आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी गिव्स मी द एंटायर यूनियन, पूरा यूनियन आ जाता है, दैट इज 90%। ये यूनियन का वैल्यू है। और अगर इसके आसपास एक स्क्वायर बना दूं मैं, तो यूनिवर्सल दैट इज टोटल सेट आ जाता है। टोटल सेट का वैल्यू कितना है, 100%। ठीक है, ये 90% है, तो नन कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, नन हो जाएगा 10%। नन का वैल्यू आ गया 10%, मैंने 10% यूज किया। कहां पर 10% यूज करता हूं मैं, यहां पर। ये नन है, तो इससे मुझे जी का वैल्यू आ गया, जी का वैल्यू आ गया 5, जी का 5 आया। सेकंड लाइन इसकी, ये मैं लिखते वक्त लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। इफ 52% ऑफ द पॉपुलेशन कैन स्पीक इन हिंदी एंड 20, तो हिंदी वाले हैं ए प्लस डी प्लस ई प्लस 5, तो इसकी वैल्यू 52% है। मुझे ए का वैल्यू नेक्स्ट लाइन से मिल जाता है। बस सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। आई रिपीटेड ट्वाइस सो दैट यू कैन click this solution and remember few formulas as well. Be firm with both the things going parallelly. I was also solving parallelly the Venn diagram as well as the following information. If some people are so good with this, they don't even use Venn diagram. ठीक है, you don't even need Venn diagram. If you are so good with this one also, you can parallelly just solve with this variables itself. Be firm with at least one of them and be ready to proceed ahead faster and faster possible. So my final answer comes out to be 22%. Question was lengthy and that's why we need to be a little more patient. Definitely round 3 for me. Why round 3? Because I don't prefer reading such kind of information when I'm trying to speed up things. But easy one. After I would realize that it's a round 2 question itself when I solved it. But I would, in the actual paper, I may have put it into round 3 because of the length of the language as well as the complexities among finding the exactly 1 and exactly 2. Okay, but the question can be a doable once you realize these kind of small information. Okay, let's move to the next one. This one based on time speed distance. I love time speed distance as it's my strength. I would definitely attempt it in round 2 because first thing, it's having a long language. Second, it's a concept of relative speed which does have some diciness. और time speed distance का आप सबको पता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है. So let's start with it without wasting any time. We can start, you can read the question below. What basic information is to us is कि let's say start. अब मेरा बार बार रिकमेंडेशन यही होता है कि एक एक लाइन रीड करते हुए इन्फॉर्मेशन लिखते जाया करो. I have divided the board in 2 parts so that I can use the space efficiently. तो एक पॉइंट A पर let's say ट्रेन P starts at point A आफ्टर 2 आवर्स, है ना. कितना 12 नून पे स्टार्ट किया था, आफ्टर 2 आवर्स, तो मतलब कितना बज गया है अब 2 PM. 2 PM पर ट्रेन P यहाँ होगा, है ना. 2 PM पर ट्रेन 12 नून से यहाँ स्टार्ट किया. लेट्स से P का स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है, अगर P का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, लेट्स नेम दिस पॉइंट एज B. लेट्स नेम दिस पॉइंट एज B, है ना. लेट्स नेम दिस पॉइंट एज B. तो A से B का डिस्टेंस कितना हो जाएगा. माय क्वेश्चन इज लेट्स से स्पीड ऑफ ट्रेन P. Speed of P, yes, speed of P, this visible on the board, yes, speed of P is
स्पीड ऑफ p इज x एंड टाइम टेकन इज 2 आवर्स। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ x कितना हो जाएगा 2x। फेयर इनफ सर, हाँ सर गॉट इट। तो यहाँ पे x क्या है स्पीड ऑफ p, तो 2x डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका है। ओके अब क्या है यहाँ पे आता है कौन, आई विल बी डिफाइनिंग इट फ्रॉम डिफरेंट कलर। ठीक है q आता है पिक्चर में, q स्टार्ट्स नाउ, q स्टार्ट्स एंड चेजिंग हैपेंस। अब ये जो चेजिंग वाला कॉन्सेप्ट है मैंने कहाँ पढ़ाया था कि अगर रिलेटिव डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे के पीछे ऐसे भाग रहे हैं और एक पॉइंट पर कैच करेंगे, टॉम एंड जेरी वाला केस, चोर एंड पुलिस वाला केस, तो उसमें क्या होता था जो हमारा इनिशियल डिस्टेंस है अपॉन रिलेटिव स्पीड गिव्स मी टाइम टेकन टू मीट। तो द फॉर्मूला इज टाइम टेकन टू मीट इज टाइम टेकन टू मीट इन सच चेजिंग केस, ओवरटेक कर रहा है, टाइम टेकन टू मीट इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते थे, आई होप सो आपको पता है। अगर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के पीछे पीछे भाग रही है या एक चोर, तो बड़े इसका ज्यादा स्पीड माइनस छोटे वाले का स्पीड, राइट, मतलब हायर स्पीड माइनस लोअर स्पीड विल गिव मी द रिलेटिव स्पीड। तो टाइम टेकन टू मीट यहाँ कितना हो जाएगा सर, ये 2 PM पे स्टार्ट हुआ था, 2 PM पे ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी और ये जो चेजिंग की स्टोरी है वो खत्म हुई थी 6 PM पर। अगर 8 PM पर, ठीक है, तो अगर 8 PM पर दोनों मिलते हैं, 8 PM पर ओवरटेक हैपेंस, लाइक अगर इफ ट्रेन Q ओवरटेक्स ट्रेन P at 8 PM from 2 PM to 8 PM, how many hours? 6 hours. So 6 hours has happened, and what was the initial distance between P and Q? Initial distance between P and Q is as good as distance of AB, that is 2x upon relative speed। let's say हमने ट्रेन P का स्पीड लिया था, स्पीड ऑफ ट्रेन P x लिया था, तो स्पीड ऑफ ट्रेन Q ले लेते हैं y, ठीक है, फॉर आवर अजम्पशन स्पीड ऑफ ट्रेन Q इक्वल्स टू y, ठीक है, तो y माइनस एक्स, ये हो गया एक इन्फॉर्मेशन। अब क्या दिया हुआ है मुझे दूसरी साइड पे, अब मुझे दिया हुआ है सम ऑफ स्पीड्स और मैं यहाँ से x और y निकाल सकता हूँ, बट आई हैव अ बेटर अप्रोच, आई हैव अ फार बेटर अप्रोच फॉर दिस वन, लेट मी सॉल्व इट विद दैट इटसेल्फ। ठीक है, अब क्या होता है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इफ दिस डिस्टेंस AB इज 5x, ठीक है, व्हाट इफ A स्टार्ट्स A से P ने A से स्टार्ट किया, एंड अब जो मीटिंग पॉइंट है वो स्टार्ट्स एट, अब क्या होगा, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन रीड करिए, द क्वेश्चन डिमांड्स अस कि लेट्स से इफ P had traveled 5 hours, if P or the first train would have traveled for 5 hours, रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5x। सर 5x कैसे, स्पीड ऑफ x कितना है 5, और 5 आवर्स के बाद का सिचुएशन देख रहे हैं, 12 नून से स्टार्ट किया था, टाइम कितना हो चुका है 5 PM, है ना, तो 5 PM पर Q कहाँ पर है, यहाँ पर Q यहाँ पर है। अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे हम, अगेन सेम लॉजिक, सेम टाइम टेकन टू मीट में सेम फॉर्मूला, व्हाट विल बी द फॉर्मूला सर, रिपीट एक बार और, इनिशियल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो इनिशियल डिस्टेंस अब कितना है, मुझे टाइम टेकन टू मीट नहीं पता है, यही तो हमको निकालना है, टाइम टेकन टू मीट नहीं पता है। अब देख रहे हैं मैं x और y निकालूंगा नहीं और उसके बिना ही आंसर आएगा, टाइम टेकन टू मीट नहीं पता है, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 5x, और टाइम टेकन टू मीट को मैं t से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 5x अपॉन y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो गया 5x अपॉन t, यहाँ से y माइनस एक्स, ये भी y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स अपॉन इक्वल्स टू 2x अपॉन 6, ठीक है, तो ये दोनों इक्वेट कर दो। क्या करेंगे, इक्वेट कैसे करना है, सिंपल सर, 2x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 5x अपॉन t, यहाँ से x और x कैंसल, t का वैल्यू आया 15 आवर्स। अब व्हाट डज दिस 15 आवर्स गिव्स कि 5 PM से 15 आवर्स बाद टाइम टेकन टू मीट, मतलब वापस से दोनों ट्रेन 15 आवर्स बाद, फ्रॉम 5 PM प्लस ऑफ 15 आवर्स, what will be the time you will get 15, 5 PM से 5 AM and then 3, 8 AM next day, 8 AM next day, so this is our answer, this was asked, okay, so काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, काफ़ी अच्छा है, you could have saved yourself from all this work of variables which I really don't like. In the paper itself I would have done it with proportionality, you just had to realize this formula of कि हाँ initial distance and relative speed, here relative speed will always remains constant, isn't that, speed is constant, if speed is constant, if speed is constant, what is the proportionality logic that we use, if speed is constant तो ratio of distances है, अगर वो AB हुआ
रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज अगर ए बी हुआ तो रेशियो ऑफ टाइम हो जाएगा इनवर्स। देखो सेम स्पीड पर जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो लेट्स से रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज ए इज टू बी, तो रेशियो ऑफ टाइम विल आल्सो बी ए इज टू बी। तो अगर रेशियो ऑफ डिस्टेंस कितना है मेरा, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इनिशियल डिस्टेंस 2x है, इनिशियल डिस्टेंस 5x है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो 2:5 मेरा रेशियो ऑफ डिस्टेंस है। तो रेशियो ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, 2:5। What does 2:5 corresponds to? 2 represents the time taken to meet. Time taken to meet कितना है, 2 to 5 PM, that is 6 hours. 6 hours. तो टाइम टेकन टू मीट में मल्टीप्लायर किस चीज़ का लगा है, अब ये SIPM स्टूडेंट आराम से समझ जाएंगे। 3 का मल्टीप्लायर है तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लायर डाल दो, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 15 आवर्स टाइम टेकन टू मीट। अगेन सेम लॉजिक, ओके, काफ़ी क्लीन आंसर निकाला है। टाइम टेकन टू मीट हो गया 15 आवर्स, और कहाँ से स्टार्ट हुई थी स्टोरी, 5 PM से, तो 5 PM से 15 आवर्स ऐड कर दो, हमारा आंसर टाइम टेकन टू मीट आ जाएगा। 15 आवर्स ऐड किया तो 8 AM द नेक्स्ट डे। ठीक है, डन। आई होप सो यू गॉट इट। दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके, अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी के साथ गुड हो तो आप, मैंने कहा है आपको बार बार, यू कुड डू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। आई वुड कंसिडर दिस एज अ गुड क्वेश्चन इंस्टेड। ओके, नॉट टफ बट गुड क्वेश्चन, मीडिएट, because that's my command over time speed distance. I hope so you all are getting the same command through practice and realizing that proportionality can be used so firmly and so easily in every place you require. ठीक है, तो I hope you got it. Let's move to the next one. Now a one-liner question, that a 5-digit number of ways you can make a 5-digit number such that odd digits occupies only the odd places. ठीक है, so language is slightly tricky. We kind of, I myself for a second will think that कि अच्छा यहाँ पर odd आना है, 1 2 3 इन 3 जगह पे odd आना है, and rest of the 2 places even. And I may proceed it. Let me show it to you what I mean by that is, let's say ये first, और count किधर से भी करो आप, 1 2 3 4 5 लिखो या 1 2 3 4 5 लिखो, doesn't matter, 3 4 5, तो these are the 5 places, है ना। अब पॉइंट ये है कि 1 पर 3 पर और 5 पर odd digits ही आने चाहिए। What are the odd digits that you need to remember? ठीक है, odd digits कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, 5 होते हैं। although I'm just mentioning a redundant information, you should already be knowing it। 2 4 8 6 6 8, है ना। तो ये इवन डिजिट्स हैं मेरे। अब मुझे सिर्फ ये 5 चाहिए यहाँ पे, 1 2 3 4 3 पोजीशन पे। तो आई मे थिंक दैट कि हाँ सर 5 × 4 × 3, एक यूज कर लिया, एक बचा, फिर चौथा, फिर तीसरा यहाँ। ठीक है, तो 5 × 4 × 3, एंड देन आई मे थिंक दैट इवन डिजिट्स 5 × 4, है ना। तो यू मे गेट अ वैल्यू, बट हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है वो। एक्चुअल क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी इस वजह से ट्रिकी हो सकती है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि यहाँ पर ऑड हो, बाकी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 2 और 4 पर ऑड भी चलेगा, इवन भी चलेगा, क्योंकि कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ऑड पे दी है ना। ये थोड़ी बोला है कि इवन डिजिट्स पे, इवन प्लेसेस पे ऑड नहीं आ सकता, तो कंडीशन सिर्फ 1 3 5 पर है। तो लर्निंग ये है, जब तक दिया हुआ ना हो तो रॉन्ग असम्पशंस मत लो। सिर्फ ये दिया है ऑड डिजिट्स, तो ऑड डिजिट्स, ठीक है, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें हमारे पास इवन पोजीशन के लिए। तो विल बी कंसिडरिंग कि हमने ऑड पोजीशन जो कंडीशन दी हुई है वो फुलफिल कर दी, उसके बाद बची हुई प्लेसेस जितने बचे हुए लेटर्स से उससे फिल कर दी। तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन फिल द फर्स्ट पोजीशन, हाउ मेनी ऑड डिजिट्स आर देयर, 1 2 3 4 5, तो 5 वेज। कोई जीरो भी नहीं है उसमें तो टेंशन नहीं है, 5 वेज। इस वाली को छोड़ो, अभी ऑड डिजिट पे जाओ, 4 वेज, है ना। बचा यहाँ से एक यूज हो गया, अब इन 5 में से एक यूज हो गया, एक बचा, 4 हो गए, फिर यहाँ से 3 वेज, है ना। फिर आते हैं, तो अब ये 3 यूज हो चुके हैं और बचे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बचे हैं और 2 पोजीशन और बची हैं। तो इनटू 7 वेज, ये और इनटू है, ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, राइट। तो 7 और ये 6, ये करना है बेसिकली। तो 5 × 7 × 4 × 6 × 3, ठीक है। लेट मी गिव यू हेल्प फॉर कैलकुलेशंस एज वेल। ठीक है, पहले तो 5 × 4 कर लो, सबसे अच्छा वैल्यू है। क्यों अच्छा वैल्यू है, इफ़ यू रियलाइज दैट 5 × 4 कितना होता है, 5 × 4 होता है 20, तो एक जीरो आ गया, है ना। 20 की, और 20 × 3 भी कर ही लो, 60 × 42, 60 × 42, 6 × 40 240, 240 प्लस 12 252, तो 2520। दिस इज माई क्वेश्चन आंसर। आई वुड कंसिडर राउंड 2, दिस इज अ राउंड 2 क्वेश्चन। वाई नॉट राउंड 1 सर, अगर क्लिक हो गया, वन लाइनर है, ट्राई कर लो, क्लिक हो गया, राउंड 1।
either round 2, both can be classified in both of them, depends on someone's exposure to PMC. It's a very individual type of question. For me it may be around 1 as well. अगर पेपर प्रेशर में क्लिक हो गया तो शायद मैं उसी वक्त कर देता, नहीं होता तो मैं आगे बढ़ जाता. सो इजी क्वेश्चन, हमें काफ़ी सारे इजी भी मिले, काफ़ी सारे ऐसे डाइसी टॉपिक्स है, काफ़ी सारे टफ भी क्वेश्चंस मिलते हैं, बट काफ़ी सारे इजी भी मिलते हैं. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, थैंक यू. आई गेस राउंड वन, यस दिस वन इज राउंड वन, बिकॉज इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इन्फो, और ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं. देयर आर 10 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 5 आर कोलिनियर, रेस्ट नो 3 ऑफ एम आर कोलिनियर, मतलब बाकी कोई कोलिनियर नहीं. नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कैसे बनती है, आई नीड टू लाइक 2 पॉइंट को पिक करना होगा, राइट. इन सारे पॉइंट में से आई कैन पिक 2 पॉइंट्स एंड आई विल बी एबल टू मेक अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर 10 पॉइंट्स लेट्स से कोई कोलिनियर नहीं होता तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट आई कैन फॉर्म इज 10C2, राइट. हाँ सर 2 पॉइंट पिक करना, बट सर 5 कोलिनियर है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. वी हैव डन दिस वन. बट ये 5C2 के अंदर एक प्रॉब्लम होता है, जब मैं 5C2 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मैं सारे ही 5C2 के सब्ट्रैक्ट, ये 5C2, लेकिन एक लाइन और बन जाती है. एक लाइन हमको काउंट करनी चाहिए जो एटलीस्ट ये पांचों को एक लाइन पर रखती है, राइट. ये पांचों को एक लाइन पर रखती है, तो वो एक 1 का एडिशन क्यों आता है, रिपीटिंग इट. द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, व्हाई डू आई नीड टू ऐड 1, क्योंकि जो बचे हुए 5 पॉइंट्स है, लेट्स से मैंने क्या किया, फिर इन 5 पॉइंट्स को जितने भी 2 लाइन्स बनाती थी, क्योंकि क्या होता क्या है कि मैं लेट्स से इसको दे देता हूं नाम A B C D E. अब मैंने उस 10 के अंदर इन 5 को भी काउंट कर रखा है, तो मैं AB को भी एक लाइन काउंट करता हूं तो AB ऐसी स्ट्रेट होती हुई जाएगी. मैं AC को भी एक लाइन काउंट करता हूं तो वो भी स्ट्रेट होता हुआ जाएगा. AD भी काउंट करता हूं तो रिपीटेडली सेम लाइंस काउंट हो जाती है. तो मैंने क्या किया कि सारी ही लाइन सब्ट्रैक्ट कर ली. इस ये जो जितनी भी लाइंस हमने बार बार काउंट करी थी, AB AC AD BD BC DE BE, सबको सब्ट्रैक्ट कर लिया और बस. लेकिन होता क्या है, लेकिन एक को तो काउंट करना पड़ेगा एटलीस्ट, तो उस एक को ऐड कर दिया. तो ये मेरा फाइनल आंसर है, 10C2 minus 5C2. That's why it's a round 1, because we have done such type of questions in lectures, live classes, and if you have solved any type of source in at least PNC, you must have observed or occurred to solve this type of a question at least once. So 10C2 याद होना चाहिए. 10 into 9 by 2, ऐसे मैनुअली दिमाग में करो. 45, 5 into 4 by 2, 5 into 4 by 2. NC2 क्या होता है, n into n minus 1 by 2, ये याद रखो एटलीस्ट इतना तो. n into n minus 1, तो 5 into 4 by 2, that is 10 plus 1. 35 plus 1, 36 is my final answer. Why round 1? Because I know this type of questions are already I have done in my practice time. I will be confident enough and I'll be marking 36 as my answer and be moving ahead. So definitely round 1. ठीक है, तो अगेन हमें एक राउंड 1 मिल ही जाता है ना, मैं तो कहा ही है राउंड 1 हमें मिल ही जाता है, भले लेटर ऑन मिल रहा है बट राउंड 1 तो है ही. तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, डन, एंड वी आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट वन. ओके, थैंक यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, अगेन राउंड 1. वाई सर, वाई राउंड 1? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे पसंद नहीं है, बट इट इज अ राउंड 1. ट्रस्ट मी, इफ यू हैव डन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अ वेरी डायरेक्ट एंड यू नो दैट यू गोना गेट द आंसर, बिकॉज हमसे एक्स इंटरसेप्ट पूछा है. तो फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग आपको इंटरसेप्ट के टाइम याद आना चाहिए, द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन इज x upon a plus y upon b equals to 1. This at least you should know this. This is, if you have done coordinate geometry, आपको पता ही होगा. This is the intercept form. अब मुझे एक्चुअली इक्वेशन बनानी है पहले तो. अब वो जो लाइन है, इट पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, अगर इनका इंटरसेक्शन है ना, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. एक्स और वाई की वैल्यूज आएगी और ऊपर से ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इससे स्लोप आ जाएगा. यहाँ से जो स्लोप आएगा, यहाँ से एक लाइन आ जाएगी, यहाँ से एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यहाँ से एक स्लोप आ जाएगा, मतलब यहाँ से स्लोप ऑफ द लाइन और कोऑर्डिनेट. हम इक्वेशन बना सकते हैं अब, कौन सा, 2 स्लोप पॉइंट फॉर्म वाला, दैट इज y2 minus y1 into slope into x2 minus x1. So pretty direct question. I guess if you have done coordinate geometry, then this is something that you can easily do. I am confident enough that it's a round 1 for anyone who has done coordinate geometry. ठीक है, तो इंटरसेक्शन फाइंड करना. अगर इंटरसेक्शन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, x का कोऑर्डिनेट इजी है, तो लेट्स मेक इट मल्टीप्लाई बाय 2, तो ताकि हम सॉल्व कर सकें. लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8. ठीक है, अब ये मेरा, ये इक्वेशन को मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, ताकि मैं साइमल्टेनियसली x और y को सॉल्व कर सकूं, क्योंकि ये दोनों लाइन, एक ये लाइन और ये लाइन, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. तो एक कॉमन कोऑर्डिनेट होता है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, और वही कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है. ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ दैट 2 लाइंस. अब कैसे निकालेंगे x और y का वैल्यू? ईजी है, सब्ट्रैक्ट द 2 इक्वेशंस, ईजी सब्ट्रैक्शन. y आया मेरा यहाँ से, y इक्वल्स टू 8 minus 6 2. y का वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में डाल दो. ठीक है, तो y एक कोऑर्डिनेट आ गया मेरा y.
इसको इस इक्वेशन में डालते हैं। x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, एक्स प्लस में y को मैनुअली डालो, आपको यू शुडंट बी वर्किंग ऑन पेन पेपर, x का y का वैल्यू यहाँ 2 डालो, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 4, तो x का वैल्यू कितना हो गया 0, तो x और y का वैल्यू मेरे पास आ गया। एंड यू कैन चेक दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, x इक्वल्स टू 0 डाला या इक्वल्स टू 2 डाला, या सेटिस्फाई, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 2 सेटिस्फाई, तो कोऑर्डिनेट दैट इंटरसेक्ट्स और सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन इज 0, 2, 0, 2। व्हाट अबाउट द स्लोप, सर परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है तो इसका जो स्लोप होगा उसका -1/m, ठीक है, तो इसका स्लोप निकालते हैं पहले, लेट्स फाइंड द स्लोप ऑफ दिस वन, तो y इज इक्वल्स टू, ये भी काफी इजी है ना, y उधर ले जाओ 3x - 2, ये क्या है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, m का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, तो इस लाइन का स्लोप कितना है 3, हमारा रिक्वायर्ड स्लोप कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो -1/3, हमारा स्लोप हो जाएगा -1/3। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये मेरा स्लोप है राइट, तो y2 मतलब y -2 अपॉन x -0 इज इक्वल्स टू -1/3, और आई वुड रादर डायरेक्टली मल्टीप्लाई x हियर, दैट इज -x/3। मेरे को तो आदत ही वैसी लिखने की है कि y y2 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू x2 - x1, ठीक है, तो ये मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला इक्वेशन लगाया मैंने, 1 पॉइंट एंड स्लोप है, इक्वेशन बन जाएगी, कितना हो जाएगा 3y -6 प्लस x, और आई वुड रादर शिफ्ट इट हियर, लेट्स शिफ्ट इट हियर, हाँ y प्लस x/3 इज इक्वल्स टू 2, सिंस 2 है मुझे इस फॉर्म में चाहिए तो एंड में जाके उधर 1 चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो y/2 प्लस x/6 इज इक्वल्स टू 1। अब क्या है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, I just made the equation of the line which we needed and the equation is y/2 plus x/6 equals to 1, तो x के नीचे क्या है a, that is the intercept of x, तो हमारा आंसर, our final answer to this question is 6, फाइनल आंसर टू दिस इक्वेशन इज 6, क्योंकि वो हमारा इंटरसेप्ट ऑफ x है, फाइनल आंसर। एंड बी कॉन्फिडेंट बिकॉज ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो दिस इज द की थिंग आई हैव हाईलाइटेड। सर बच्चे बोलते सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टफ लग रहा है, ज्योमेट्री टफ लग रहा है, तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था एक ज्योमेट्री का क्वाड्रिलेटरल वाला, आई थिंक इट वाज टफ, when we solved it we realized it was tough, तो शायद हमें वो एक क्वेश्चन छोड़ दिया, बट ये वाला क्वेश्चन तो हम आसानी से कर ही सकते थे। दिस इज द पावर ऑफ यू नोइंग बेसिक्स ऑफ एवरी चैप्टर। अगर ये क्वेश्चन आपने बेसिक्स सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स किया हुआ है, पता है लाइन कैसे निकालता है, पता है इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, पता है कि इक्वेशन का एक पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, इस पॉइंट से और एक स्लोप से हम इक्वेशन बना सकते हैं, तो अगर ये सब पता है देन दिस क्वेश्चन इज अ डूएबल वन एंड राउंड वन इटसेल्फ, एंड आंसर इज 6। So be confident and be good with your basics of every chapter. Being good with basics gets you 4 marks here itself. So yeah, we are done with the 25 question that we targeted. Also, after this you have to be a little more patient and analyze that are there any concepts still I think when I was attempting the previous year paper I was very dicey. You know why? Because so that you can know, अच्छा यार ये time speed distance में जब ये relative वाला concept आता है, I need to practice more. I'm not so sure. I was even like fumbling when I was attempting that question itself. So make sure that you also have a very clear picture or idea about which concepts you need to put more efforts on. Because your picking up strategy itself depends on your affinity and strength of a topic. Let me highlight again the round strategy that I followed. For question number 11, when we started with function, since a function is a topic which may not give you that familiarity, and function is a very, in that middle area, you may get it, you may not get it. So I'll keep functions as round 2. Question 12, that should be a round 1 because that was a pretty direct question on logs. Question 13 was of round 1 because it was very easy in terms of what concepts to be done and in what direction we have to go. So question 13 again round 1, question 14, 15 and question 14, 15, 16 definitely round 2. Again you see why I am considering them as round 2 because my familiarity with matrices, determinants, trigonometry is not that far, that great in depth in comparison to series or arithmetic का कोई chapter. ठीक है, तो 14, 15, 16 round 2, 17 and 18 I personally feel that they were round 3 for me. Like for me they were round 3. That's something I would be like, यार इससे अच्छा तो वो मैट्राइसेस का क्वेश्चन ही कर लेता हूँ, इनसे अच्छा तो वो पहले वाला कर लेता हूँ, इसको तो एंड में ही करूँगा. फिर कमिंग टू द 19 वन, दैट 4 डिजिट नंबर, हाईएस्ट रेशियो, इफ यू क्लिक इट इन वंस, ऑप्शन से must round 1. If don't, then don't keep on fumbling and don't waste your time on that. Move to the next one. It's definitely round 3 if you don't click it in once. आप पूरा पेपर करने के बाद उस पर आइए. Question number 20.
राउंड 2 नो वरीज, ठीक क्वेश्चन था, फंक्शन का था, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना था, बट राउंड 2 कैन बी डन easily if you come once again and start attempting it. 21 round 3 for me because that set theory is my strength. I am good with sets, but again that question itself had so many information, so many order of linkages, everything needs to be have thought in a very accurate manner. So definitely round 3. Question number 22 round 2, and from 23 to 25 round 1. नाउ इफ यू रियलाइज दैट भैया ये राउंड 1 का सीन क्या हुआ, इतने कम राउंड 1, हाँ तो हमने 12 और 13 राउंड 1 में किया और फिर एक 19 अगर बन गया तो बन गया, वरना 23 टू 25 राउंड 1 में किया. अगर आप चेक करोगे एक्चुअली ये जो 5 क्वेश्चन है काफी डायरेक्ट है और काफी ईजी है. तो आपको वो पेपर में मेंटेन करना होगा वो कामनेस, वो माइंडसेट, सो दैट अगर आप पहले 2-3 क्वेश्चन करने के बाद ऐसे एकदम स्किप करने का स्ट्रेंथ रखो, अरे नहीं आता यार, बहुत लेंदी है यार, बहुत ज्यादा वर्क होगा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. व्हेन देयर इज अ पेपर पैटर्न ऑफ 40 क्वेश्चन, सिंस वी नो दैट पेपर पैटर्न इज आउट नाउ, 2040 का अब है, देयर आर 60 क्वेश्चंस इन द पेपर एंड यू कैन पिक अप 2019 पेपर एंड देयर विल बी सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल टेक लाइफ आउट ऑफ यू टू सॉल्व दैट वन. It will take your soul out of your body to solve that some particular questions, and there will be some question that could be done in 20-30 seconds. So there is a need for you to be smart to pick up questions and attempt them, because again this paper is not about solving each and every question. This paper is about you having a smart strategy or strategy maker, or having a smart choices in the actual paper. So make sure when there is a 60 number of question, definitely you will have some good number of question that could be attempted very easily, and there will be some question that will just make you sit there, solve and eat away all your time. So here is the conclusion that I would like to bring. Make sure after attempting every mock or every paper, or let's say when I solve these 25 questions, I'm having a clear picture, because these type of questions are my strength, these type of questions are not my strength, and I need to be little aware of कि अच्छा इस type वाले में इस direction में जाना है, ये वाले जब भी आएंगे I have to be clean and clear with my head. Make sure that you have some topics very strong, have somewhere you safe log है आपका, जैसे मेरा logs, सीरीज, फंक्शंस, मेरा सेफ्टी बार है, मैं इन पर रिलाई करता हूँ कि मैं अगर उनको करने बैठता हूँ तो मैं आंसर निकाल लूंगा. बट देन कमिंग टू द नेक्स्ट साइड, मेरा ट्रिग्नोमेट्री, मेट्राइसिस डिटरमिनेंट्स आर नॉट माय सेफ्टी बार, बट स्टिल आई विल अटेम्प्ट इट इफ आई एम एबल टू गेट इट. इफ आई डोंट गेट इट, इट्स फाइन. पीएनसी सेम, कि पीएनसी अगर आता है तो बन जाएगा, नहीं आता है तो आई स्किप इट, बिकॉज देयर विल बी क्वेश्चन दैट आई कैन डू. तो आपको आपका टॉपिक पता होना चाहिए. शायद आपके लिए अरिथमेटिक सबसे ईजी हो, अरिथमेटिक में आपकी स्ट्रेंथ है तो उनको करना की एक स्ट्रेंथ बनाओ. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो योर स्ट्रेंथ, यू नो योर वीकनेसेस, यू हैव दैट स्ट्रैटेजी ऑफ पिकिंग अप क्वेश्चंस एंड मूविंग अहेड विद द कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर एंड. एंड इफ यू थिंक दैट यू नीड एनीथिंग एज सच एक्स्ट्रा फॉर एनी टॉपिक, you want me to make a video, you can comment in the section below. Also, if you like the entire efforts of making solution of 25 and you were here till the end, then like the video and comment and subscribe. Thank you, bye bye.